वंदना करे, वंदना करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे हो मान पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना करे वंदना उनकी करे। जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवी यह मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें ठिकाना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से ताकि नित्य आए निरंतरा, जिनसे हो पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना वंदना की करे। जिनका है चिंतन शुभ यही, हो मानव सुखमय। जिनका है चिंतन शुभ यही, हो मानव सुखमय। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी, श्रद्धा समर्थ आए मानवीय परंपरा, जिनसे हो पथ ये प्रकाश ज्योति से भरा। सुशोभित है धरा, जिनसे हो प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना की करे।
सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना, उच्चता श्री मियाँ मात सबके की जय। हेलो। हाँ, सबके लिए सूचना है कि अपना ये प्रोग्राम YouTube में लाइव हो रहा है, तो उसका लिंक जो टेलीग्राम में और व्हाट्सएप में जो ग्रुप है उसमें उसका लिंक शेयर किया है। तो अपने कोई भी मित्र कोई जरा उधर से मतलब अपने उधर से देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हैं। अभी मैं धनित भाई को आमंत्रित करता हूँ कि आप भैया का परिचय। नमस्कार, सुप्रभात, साल मुबारक, नूतन वर्षाभिनंदन। લાભ પાંચમ હમણાં જ પૂરી થઈ. મોટાભાગના લોકો લાભ પાંચમના દિવસે સારું મુહૂર્ત જોઈને પોતાના વ્યવસાયની, ધંધાની, કામની શરૂઆત કરતા હોય. અને કામની શરૂઆત જ્યારે કરે ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે પૂજન શેનું થતું હોય? આપણે એક સંદર્ભ ભૂલી ગયા છીએ. આપણી સંસ્કૃતિમાં દરેક તિથિની સાથે અલગ અલગ વિધિઓને જોડવામાં આવી છે. એમાં જેમ લાભ પંચમી છે, લાભ પંચમીને જ્ઞાન પંચમી પણ કહેવામાં આવે છે. પણ આપણે એને જ્ઞાનના દૃષ્ટિકોણથી જોતા નથી. વાઘ બારસ આપણે બધા ઉજવીએ છીએ, પણ કોઈને પૂછીએ કે વાઘ બારસ એટલે એક્ઝેક્ટલી શું, એનું નામ વાઘ બારસ કેમ છે, એમાં વાઘ ક્યાંથી આવ્યો, તો કેટલા વડીલો પાસે આનો જવાબ મળશે? એ વાઘ બારસ નથી, એ વાક બારસ છે. વાક, વાંગ, સરસ્વતી દેવીની પૂજાની વાત છે. વાક એટલે વાણી, વાક એટલે ભાષા, વાક એટલે શબ્દો જેના થકી આપણે અર્થ સુધી પહોંચીએ છીએ અને શબ્દો થકી આપણે અભિવ્યક્ત થઈએ છીએ. ભાષા થકી આપણે આપણી જાતને અભિવ્યક્ત કરીએ છીએ, બીજા સુધી પહોંચીએ છીએ. તો વાક બારસ છે. વાક બારસના દિવસે વાત છે ભાષાની, શબ્દોની, અર્થની, જેના થકી આપણે આપણા અસ્તિત્વને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ એની. દિવાળી હમણાં આપણે બધાએ ઉજવી. કેટલા લોકોને કાજુ કતરી ખૂબ ભાવે છે? હાથ ઉપર કરો. હા હા હા, જોરદાર તાળીઓ બધા માટે. આ એવા લોકો છે કે જેમની સામે કાજુ કતરીનો ડબ્બો પડ્યો હોય તો બીજી કોઈ ખજાનાની જરૂર નથી. આખો દિવસ એમાંથી એ ખાધા જ કરે. અને એમને એમ પૂછો કે કેટલી કાજુ કતરીથી મનમાં સંતોષ થાય, એક્ઝેક્ટલી કેટલી કાજુ કતરી ખાઈએ તો પેટ ભરાઈ જાય અથવા તો મન ભરાઈ જાય. પેટ તો કદાચ ભરાતા ભરાય, કારણ કે જમ્યા પછી એ 2-3 ડબ્બા ખાઈ જનારા છે જ. આપણને બધાને આ વાતનો અનુભવ છે કે જ્યારે કોઈ વસ્તુ પહેલી વાર મળે ત્યારે એનો રોમાંચ, એનો આહલાદ કંઈક જુદો જ હોય. પછી ધીરે 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 માની લો કે કાજુ કતરી કે મઠિયા, જેને જે ભાવતું હોય, મોહનથાળ, ઘૂઘરા, દિવાળીમાં જે નાસ્તો ભાવતો હોય, ચકરી, તમે 5 ખાઓ, 10 ખાઓ, પછી 15 ખાઓ, પછી તો ક્યાંક પેટ એમ કે હવે બસ,
पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। तुष्टिगुणનો નિયમ અહીંયા લાગુ પડે। એટલે આપણે ભોજન હોય, કપડા હોય, પ્રવાસ હોય, સંસ્કૃતિ હોય, પરિવાર હોય, દેશ હોય, દુનિયા હોય, સમગ્ર સૃષ્ટિ હોય, બધે જ શોધીએ છે કંઈક એવું કે જેનાથી આપણું મન ભરાય, જેનાથી આપણા મનમાં સંતોષ થાય। ખાલી પેટ ભરવાથી કંઈ થતું નથી। ગમે એટલું ફરીને, કેટલા લોકો ફરવા દિવાળીમાં જતા હોય, એ ફરવા એટલે જતા હોય કે આખા વર્ષનો થાક લાગ્યો હોય, અને ફરીને આવે ત્યારે ફરવાનો થાક લઈને આવે। ફરવાનો થાક ઉતારવા માટે પાછા 2 દિવસ જોઈએ કે બહુ બહુ થાકી ગયા ફરીને આવ્યા એનો। આપણે મૂળ વળ ચડેલી દોરીઓ છીએ અને વળ ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ જેમાં વળ ચડતા જાય છે। મૂળ શોધીએ છે કંઈક એવું કે જે કાયમનું હોય, જે હંમેશ માટે હોય, કંઈક એવું સુખ જડી જાય કે જે આપણને કાયમ માટે તૃપ્ત કરે। કાજુ કતરી હોય એટલે ખા ખા કરી આપણને એમ થાય કે કાયમ માટે મજા પડી જાય, પણ કાયમ માટે મજા ટકતી નથી। પાછું પેટ ખાલી, પાછું મન ખાલી, પાછું કંઈક નવું જોઈએ। કાજુ કતરી ખાઈ લીધી, 1.5 કલાક પછી પાછું કંઈક કે ચલો હવે આઈસ્ક્રીમ ખાવા જઈએ, આ ખાઈ લીધું, તે ખાઈ લીધું, આમ તેમ વિવળ બનીને આપણે ભટક્યા કરીએ। ઘરમાં હોઈએ ત્યારે પ્રવાસ યાદ આવે, પ્રવાસમાં હોઈએ ત્યારે પ્રવાસમાં, લાંબા પ્રવાસમાં ગયા હોય ને, 17મો દિવસ તમારી પરીક્ષા હોય, જો લાંબા પ્રવાસમાં ગયા હોય ને 13મો કે 17મો દિવસ, ત્યાં સુધીમાં તો એમ થઈ જાય કે હવે ઘરે જવું છે। આ ઘરે જવું છે એટલે માત્ર તમારું પેલું 4 દિવાલ વાળું ઘર છે એ નહીં, એ હોમ કમિંગ જે છે ને, એ ઘર સુધી પહોંચવાની, નિજ ધામ સુધી પહોંચવાની જે આપણી શોધ છે, તલબ છે, એ આપણા બધાની સરખી જ છે। અને એ સરખી શોધને કારણે જ આજે તમે તહેવારના ટાઈમે જ્યારે દુનિયા આખી બહાર ફરી રહી છે ત્યારે અહીંયા પરિવાર સાથે ભેગા થયા છો સુખ શોધવા માટે। અને તમે જે શોધવા આવ્યા છો ને એનો જવાબ અહીંયા જડશે, જડશે ને જડશે જ। તમારા મનમાં તમે 20 વર્ષના હો, 50 વર્ષના હો, 65 વર્ષના હો, તમારા આટલા જીવનમાં તમે જે પણ દુનિયા જોઈ, તમારા જે પણ અનુભવો છે, તમારા કાર્ય વ્યવહારમાં તમને અત્યાર સુધીમાં જે પણ મળ્યું છે અથવા જે નથી મળ્યું, એ સંદર્ભે તમારા મનમાં જેટલા પણ પ્રશ્નો છે એ બધા પ્રશ્નોનો ઉત્તર આપશે સોમત્યાગીજી। એક એવા સમર્થ વ્યક્તિ જે અહીંયા સમર્થના ગ્રુપમાં પોતાના સામર્થ્યથી તમને સમર્થ બનાવશે। એમની યાત્રા 1990ના દાયકામાં શરૂ થઈ, જ્યારે ભારતે પડખું ફેરવવાની શરૂઆત કરી હતી। ભારતે પડખું ફેરવ્યું કેવી રીતે? એ વખતે આપણો દેશ નાણાકીય રીતે ખૂબ કટોકટી ભરી પરિસ્થિતિમાં હતો। ખૂબ કટોકટી ભરી પરિસ્થિતિ 1991, 92, 93નો સમય જેમને યાદ હશે। અને એના પછી લિબરલાઇઝેશનનો એક દોર આવ્યો, ઇકોનોમી આપણી બદલાઈ, ભારતે પોતાના દ્વાર ખોલ્યા દુનિયાની ઇકોનોમી માટે। જ્યારે ભારત સમગ્ર સૃષ્ટિને, સમગ્ર દુનિયાને, બીજા દેશોને જુદા દ્રષ્ટિકોણથી જોવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યું હતું, એ વખતે આ એક વ્યક્તિ એ પોતે કેમ અહીંયા છે, જીવનમાં સાચું સુખ શું છે, કેવી રીતે ન્યાય નીતિપૂર્ણ, સદાચારપૂર્ણ જીવન જીવી શકાય, અને આ જે ભ્રષ્ટાચાર ભર્યું જીવન છે એનાથી દૂર કેવી રીતે રહી શકાય, સમાજમાંથી ભ્રષ્ટાચાર દૂર કેવી રીતે થાય, કેવી રીતે માણસ નૈસર્ગિક પરિસ્થિતિમાં સુખમય જીવન જીવી શકે, આવા બધા પ્રશ્નો સાથે પોતાના પ્રશ્નોની શોધમાં નીકળી પડ્યો, એના ઉત્તર શોધવા માટે નીકળી પડ્યા। અને શોધ દરમિયાન એમને પ્રકૃતિએ મેળાપ કરાવી આપ્યો, એક રિયલાઇઝ્ડ બીઈંગ, એટલે કે જેણે અસ્તિત્વ જોઈ લીધું છે, જેણે અસ્તિત્વનું દર્શન કર્યું છે, એવા ઋષિની સાથે શ્રી એ નાગરાજજી। નાગરાજજીના પરિચયમાં આવ્યા પછી એમને જે પણ પ્રાપ્ત થયું એ બધાને વહેંચે છે। એ ખૂબ ઉચ્ચ કોટીના પ્રબોધક છે। એમને જે બોધ થયા છે એ આપણા બધા સુધી પહોંચાડે છે, આપણા ઊંડાણ સુધી એના સારને પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, બહુ જ સરળ ભાષામાં। આ છેલ્લી 45 સેકન્ડમાં જેટલી અઘરી ભાષા મેં વાપરી એવી કોઈ જ અઘરી ભાષા એ વાપરતા નથી। અને એ જ્યારે વાત કરે છે ત્યારે ભલે તમે હિન્દીમાં
નાના હો ત્યારે બહુ સારા માર્ક્સ ના મેળવી શક્યા હો અને હિન્દી તમારો પ્રિય વિષય ન રહ્યો હોય, તમને એમ થતું હિન્દીમાં આપણને ટપ્પો પડતો નથી, આ તો બહુ અઘરું છે, એ આખી વાતને હિન્દી ભાષામાં જ માત્ર ભાષાના શબ્દો હિન્દી છે પણ એમનો ભાવ જે છે એ એટલો બધો તાકાતવાન છે, એટલો બધો ઉર્જાવાન છે, એટલો બધો બળવાન છે કે સીધો તમારા ભાવ પ્રદેશ સુધી પહોંચે છે. અને એટલા માટે તમને ભાષાનું કોઈ બંધન નડતું નથી. અહીંથી જે પણ રજૂઆત થશે એમાં કદાચ તમને મારું એવું માનવું છે, આ મારું આકલન છે, હું કદાચ ખોટો પણ હોઈ શકું, ઘણા બધા લોકોને કદાચ 2 કલાક 5 કલાક 8 કલાક 12 કલાક બીજો દિવસ 2 દિવસથી વધારે નહીં થાય તમને આ ભાષાથી અભિમુખ થવામાં, આ ભાષાને સમજવામાં. એ જે રીતે વાત કરશે તમને તમારા બધા જ પ્રશ્નોના જવાબ મળશે, કારણ કે અત્યાર સુધીમાં હજારો કોલેજીસમાં તેઓ ખૂબ બધા આવા વર્કશોપ્સ લઈ ચૂક્યા છે અને જીવન વિદ્યાના 7 દિવસના પરિચય કેમ્પમાં, શિબિરમાં એ જે પણ કંઈ વેચે છે એના પછી મોટા ભાગના લોકો આગળની યાત્રા માટે તૈયાર થઈ જાય છે, પુસ્તકોના પઠન માટે, અને પછી આગળની જે શિબિર જેમાં આપણી એક યાત્રા ભણવાની, અધ્યયનની, કોઈ પણ ઉંમરના હો તમે, એ શરૂ થાય અને તમે એના માટે સજ્જ થઈ જાઓ, એવી એ માનસિક તૈયારી આ 7 દિવસમાં કરી આપે છે. તો સૌથી પહેલા તો તમારા બધા માટે તાળીઓ એટલા માટે કે તમે 7 દિવસ કાઢવાની તૈયારી બતાવી છે. આજના સમયમાં કોઈને એમ કહે કે 7 કલાક મળવાનું તો નથી મળતા. દિવાળીમાં કોઈના ઘેર જવું હોય, બેસતા વર્ષમાં સાલ મુબારક કહેવા માટે તો ફોન કરીને જવું પડે, ઘરે છો કે નહીં. એવા ટાઈમે તમે પરિવાર સાથે અહીંયા આવ્યા છો અને સોમ ભૈયા જે 7 દિવસ તમારી સાથે વાતો કરશે, સૌથી મહત્વપૂર્ણ વાત આજના જમાનામાં જે હોય કે પેમેન્ટ કેટલું લેશે. તમને જાણીને આનંદ થશે કે સોમ ભૈયા એ 1995-98 થી લઈને આજે 2022 સુધી આટલા વર્ષોથી નિરંતર આ કામ કરે છે. આજ સુધી એમણે આ કામ માટે એક પણ રૂપિયો લીધો નથી. પણ એમનું પેમેન્ટ છે શું? એમનું પેમેન્ટ એ છે કે જે અમે બધા કરીએ છીએ, કે પછી આવનારા સમયમાં તમારે કરવાનું છે. અમે પણ આ યાત્રામાં સોમભૈયાની પાસે ભણીને, પ્રબોધન લઈને આગળ પુસ્તકો ભણવા માટે બીજી બધી શિબિરોમાં અધ્યયન કરતા થયા અને મને પૂરો વિશ્વાસ છે કે અહીંયા ઉપસ્થિત જે 500 લોકો છે એ 500 લોકોમાંથી પોતપોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે 499 લોકો અધ્યયન માટે તૈયાર થઈ જ જશે. તો આપણે જે સુખ શોધીએ છીએ, આ દિવાળીના અનુભવથી એક વાત પૂરી કરીને પછી સોમભૈયાને આમંત્રિત કરું. હમણાં જ મારી સાથે એવું થયું કે અમે એક મિત્રના ઘરે ગયા હતા. ખૂબ સંપન્ન પરિવાર છે, 3 બંગલા છે એમના, એક જ કેમ્પસમાં 3 અલગ અલગ બંગલોઝ એમના જ છે, 5 જ જણા રહે છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે કેટલા બધા એમની સાથે કામ કરનારા મિત્રો હોય, મદદ કરનારા મિત્રો હોય, જે રસોઈ કરતા હોય, ઘર સાફ કરતા હોય, ઘર મેન્ટેન કરતા હોય, તમે સમજી શકો છો. ઇટાલિયન પેલું મગ્સમાં ચા અને નાસ્તો અને બધી ગોલ્ડ પ્લેટેડ પ્લેટ્સમાં નાસ્તો સર્વ થયો હતો. અને ચા જે હતી ને એ ચા કડવી વખ હતી. એમણે ચાખી, બીજું તો કોઈ કઈ બોલ્યું નહીં. એમણે ચાખી અને પછી એમને રિયલાઇઝ થયું કે આ ચા તો બહુ જ ખરાબ છે. એટલા માટે પછી એમણે પેલા રસોઈયા ભાઈને બોલાવીને ખૂબ વિનમ્રતાપૂર્વક એમને એમ કહ્યું કે ભાઈ આજે ચા તમે બનાવી છે? તો એમણે પેલા રસોઈયા ભાઈ કહ્યું કે ના, તો કે મેં તમને કહ્યું છે કે ચા તો તમારે જ બનાવવાની, બીજા કોઈએ નહીં બનાવવાની, તમે બનાવીને લાવો ને, તમારા હાથની ભાવે છે. અને એમ કહીને એમણે ચા બદલાવી નાખી. અહીંયા 2 વસ્તુ શીખવા મળે છે. એક કે એક માનવ તરીકે બીજા માનવને આપણે કેટલું માન આપીએ છીએ. એમણે રસોઈયા ભાઈનું બધાની હાજરીમાં જરાય અપમાન ના કર્યું, કોઈ રીતે અડધૂત ના કર્યા, એમને ધૂતકાર્યા નહીં, કોઈ ગુસ્સો ના કર્યો અને કેવી કુનેહપૂર્વક બધાને સારી ચા પીવડાવવાનો પ્રબંધ કર્યો. પણ સાથે બીજી એક વાત કે સોનાની થાળી હોય ને તોય ભોજન સ્વાદિષ્ટ હોય આવશ્યક નથી. સોનાની થાળી હોય ને તોય તૃપ્તિનો ઓડકાર આવે આવશ્યક નથી. 7 બેડરૂમ વાળું ઘર હોય, સારામાં સારો પલંગ હોય, સારામાં સારું ગાદલું હોય, તોય સારી ઊંઘ આવે એ આવશ્યક નથી. સારી ઊંઘ આવે, સારી ભૂખ લાગે, જિંદગીમાં ઘસઘસાટ ઊંઘી શકો અને ખડખડાટ હસી શકો, એવી માનસિક સ્થિતિ, સહજતા એ સરળતાથી બધાને મળતી નથી. કારણ કે બધા એક પ્રકારના સ્ટ્રેસ હોય છે. તો એ સ્ટ્રેસમાંથી મુક્ત થવા માટે, ચિંતાઓમાંથી, ભવિષ્યની ચિંતાઓમાંથી મુક્ત થવા માટે, ભૂતકાળની પીડામાંથી મુક્ત થવા માટે
અને વર્તમાનમાં સહજ રીતે કેવી રીતે જીવી શકાય એ માટે જીવન વિદ્યા આપણા સુધી પહોંચાડવા માટે હું આમંત્રિત કરું છું શ્રી આદરણીય સોમત્યાગીજીને. તમારા ચહેરા પર સ્મિત સાથે વાત સંપન્ન કરું. બહુ જૂનો જોક છે. એક જણાએ પૂછ્યું આવી રીતે દિવાળીમાં બધા સરસ નવા કપડાં પહેરીને જાય અને બધું નવી નવી વસ્તુ, એટલે એક જણાએ પૂછ્યું, ભાઈબંધે પૂછ્યું કે તારી ઘડિયાળ બહુ સરસ છે, બ્રાન્ડેડ, કેટલાની છે? પેલો કે 30,000ની છે. પેલો કે મારી તો 300ની જ છે, પણ ટાઈમ તો સરખો જ બતાવે. ओके. हेलो. हेलो. हाँ जी, सभी को नमस्कार. बस ऐसे ही करते करते 7 दिन में उड़ जाना है. देखिए, लगभग परंपरा तो यही है कि गांव कस्बे की ओर देखता है. कस्बा, कस्बा समझते हैं? जैसे विसनगर कस्बा, 1 लाख का पॉपुलेशन, और कस्बा थोड़े से और बड़े शहर की तरफ, फिर वो अहमदाबाद की तरफ, अहमदाबाद लंदन की तरफ, है ना? क्या इसको रिवर्स कर सकते? अहमदाबाद विसनगर की तरफ देखें, ऐसा हो सकता है क्या? ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन, जिसको लेके ये 7 दिन का वर्कशॉप आपके साथ करेंगे, उसमें आदरणीय नागराज जी इस पूरे प्लेनेट पे आदमी की यात्रा को 3 पार्ट में बोलते हैं. एक पार्ट वो था कि जब हम जंगल में पशुओं के साथ, पशुओं के बीच में जन्म लिया, पशुओं के साथ में रहना शुरू किया, तो उन्होंने कहा कि हम वंश विधि से हजारों साल जिए, पशुओं की तरह ही हजारों साल जिए. वंश विधि के साथ चलते चलते कोई एक समय आया जब हमने एग्रीकल्चर को पहचाना, खेती को पहचाना. खेती को पहचान के इस बात का भरोसा हो गया कि अब जिंदा रहने के लिए तो उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि साल भर का अनाज या साल भर का खाने पीने का सामान घर में इकट्ठा है. और मैं संदर्भ कभी कभी लेता हूँ. अभी वो पिछले दिनों नोआ हरारी का बुक पढ़ रहा था, तो वो कह रहा था कि 12,000 साल पहले लगभग कृषि शुरू हुआ, और कृषि युग शुरू होने के पहले 33% पुरुष मर ही जाते थे, किसी बीमारी में, किसी युद्ध में, लड़ाई में, ईर्ष्या द्वेष में, भूख से, जंगल में पशुओं के शिकार में. तो आप कल्पना करके देखिए कि 33% पुरुषों को जवान होते होते मरना ही था, तो उस समाज में अपने में एक असुरक्षा का कैसा भाव होगा? 33% बोले तो हर 3 घर में से 1 घर का कोई मरे.
तो फिर हर घर को लगेगा कि मेरे घर का भी नंबर लग ही सकता है। तो मान लीजिए कम ज़्यादा जो भी होगा, 12 साल हजार पहले हमने खेती को पहचाना और कम से कम साल भर का अनाज और खाने पीने का सामान, एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो जिंदा रहने को लेके कॉन्फिडेंस हमको आया और उसके बाद से लेके अभी तक की यात्रा हमने की। जैसे जैसे आगे बढ़े तो लोहा पहचाना, यंत्र पहचाने, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी पहचानी। तो इसको कह रहे हैं कि कर्म युग। पहला युग कौन सा? वंश वंश विधि से जिए, फिर कर्म विधि से जिए, और कर्म विधि से जीते जीते हम रोबोटिक्स और क्या वर्चुअल रियलिटी तक पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए, वर्चुअल रियलिटी तक पहुंच गए, ड्राइवरलेस कार तक पहुंच गए। इसका मतलब है से जो सूक्ष्म रियलिटी है, सॉफ्टवेयर एक सूक्ष्म काम है। हम मशीन को एक इंस्ट्रक्शन देते हैं और मशीन काम करती है। और अब ये भी कह रहे हैं कि जितने भी काम मेमोरी और लॉजिक को यूज करके होता है, वो सारा काम आने वाले 20 साल में रोबोट ले लेगा। तो आदमी के 30% 40% काम हो सकता है रोबोट ले ले। तो ये कर्म युग का यहाँ तक की बात हम कह रहे हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद भी ये पता चला कि जिंदगी में जिस सुकून की हमको तलाश थी, ध्वनित भाई ने उसको आपके शब्दों में बहुत अच्छे से कहने की कोशिश की कि पेट तो भरा, मन नहीं भरा। तो ये सारा वंश विधि से जीने के बाद, कर्म विधि से जीने के बाद, चांद तक जाने के बाद और तमाम सुविधाओं से, जितना हमने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा सुविधाओं को भोगने के बाद भी निष्कर्ष ये आ रहा है कि नहीं, वो जो अपने में जिस सुकून की तलाश है, अपनों के साथ जिस सुकून की तलाश है, वो तो कहीं अभी शेष है, वो तो कहीं अभी बाकी है। तो फिर तीसरी जगह आती है कि ज्ञान विधि से जीना मानव के लिए जरूरी है। तो मेरे को लगता है वंश विधि, कर्म विधि, और तीसरा युग शुरू होता है जब हम ज्ञान पूर्वक जिएं। तो अभी तक हमारे पास जिंदा रहने का ज्ञान है, मन भर जाए वो ज्ञान भी हमारे पास उपलब्ध हो जाए, है ना, इसकी ज़रूरत तो है। तो मेरे को लगता है कि हम, हालांकि दशरथ भाई के परिवार और विश्वनगर के आसपास के कुछ लोगों ने 2012 में समुत्कर्ष अहमदाबाद में एक जगह है, वहाँ पे आप लोगों ने शिविर किया था। लेकिन मैं पहली बार विश्वनगर में 7 दिन का शिविर पूरा करने का अवसर मिला है। तो विश्वनगर के लोगों को और समर्थ परिवार के सभी लोगों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो एक बार हाथ खड़े करवाना चाहूँगा विश्वनगर के लोगों, केवल विश्वनगर। शानदार, जोरदार तालियां, बहुत ही बढ़िया। देखिए, मेरे को लगता है कि हमारे लिए भी ये बहुत कम अवसर रहते हैं जब वो मेट्रो सिटी से नीचे उतरते हैं। अक्सर वो मेट्रो सिटी में ही निपट लेते हैं। तो लगभग सारे कार्यक्रम कभी अहमदाबाद, कभी सूरत, कभी दिल्ली, कभी कहीं और मेरा ऐसा सोचना रहता है कि छोटे शहरों के वातावरण में अभी भी बहुत दबाव नहीं है। जब विश्वनगर में कहीं शादियां होती हैं तो आपके ऊपर कपड़े पहनने का कितना दबाव होता है? ज़्यादा नहीं होता होगा, अहमदाबाद टाइप नहीं होता हो। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा दबाव, क्योंकि जितना बड़ा शहर उतने बड़े लटके झटके, उतनी बड़ी पैकिंग। माल चाहे गायब रहता है, पैकिंग भरपूर होती। तो इन छोटे शहरों में जिंदगी को छूने का अवसर ज़्यादा है। तो ये देखते हैं कि 7 दिन बाद हम क्या स्थिति में इस संभावना को देख पाएंगे कि कभी हम अगले शिविरों में अहमदाबाद और सूरत को बता रहे होंगे, देखो जिंदगी जाके देखना है तो विश्वनगर में देखो। ये हो सकता है, क्योंकि ध्वनित भाई ने भी कहा और हमारे तमाम मित्र यहाँ मौजूद हैं
आज की डेट में शहरों में उन लोगों की कमी नहीं है जिन्होंने सोचा नहीं था, उससे बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के पास आया है, और जितना भोग सकते थे सब भोग डाले, और उसके बाद उसके अकेलेपन को, उसके खालीपन को भी लोगों ने देखा है। और ये बहुत पॉजिटिव है कि जब तक आप के पीछे तो दौड़ रहे थे, कि समाज का 5% लोग होता है जो बिजनेस में, सरकारी नौकरियों में, किसी खेल कूद में, किसी पब्लिक सिनेमा और फिल्म इंडस्ट्री में, वो जो एक सेलिब्रिटी स्टेटस के साथ लोग होते हैं, उनके ओढ़ने पहनने को हम देखते हैं, उनकी जीवन शैली को हम देखते हैं और उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बड़ा मार्केट ये लोग क्रिएट कर रहे होते हैं। तो जिस दिन हमको ये पता, और इस दौड़ में हमने एक लंबा समय लगाया है, लंबी ऊर्जा लगाई है, यदि हमको ये भरोसा हो सके कि आखिर हम जिस चीज़ के लिए दौड़ रहे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ कि हमारे घर अच्छे ना हो और हमारे कपड़े ठीक ना हो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अंततः जिस चीज़ के लिए हम दौड़ रहे थे यदि वो वहाँ भी नहीं है, तो फिर हम एक नए सिरे से खोजना शुरू करेंगे कि भाई, जिसको हम कह रहे हैं कि ज्ञान से कम में आदमी खुश नहीं रह सकता है ना। आजकल हम सभी लोग स्मार्ट हैं और स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। तो किसी सभा में वो बड़ी कंपनी के बड़े सीईओज के साथ में कोई मीटिंग चल रही थी, अजय भाई कभी बता रहे थे, तो बोले हम इतनी बड़ी हजारों लोगों को मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी कंपनी को मैनेज करते हैं, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को मैनेज करते हैं, तो पूछने वाले ने पूछ दिया, अपना मन भी मैनेज होता है? तुम्हारे अपने मन को मैनेज कर लेते हो? अब यहाँ पे आके ऐसा था जैसे कोई एलियन टाइप बात हो रही है, कोई दूसरे ग्रह की बात हो रही है। तो हम इतनी बड़ी मशीन मैनेज करते हैं, हमको लगता है कि हम देश चलाते हैं, हमको लगता है कि हम तमाम, है ना, लेकिन मेरा ही मन मेरे अनुसार चलता है क्या? तो दोस्तों, इन 7 दिनों में इस बात पे भरोसा पाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से हमने वंश विधि से जिया, शरीर को बनाए रखने का अधिकार पा लिया, कर्म विधि से जिया तो तमाम शरीर के लिए जो कुछ भी अनुकूल साधन थे, सुविधा थे, जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा उसको पा लिया। ये सब पाने के बावजूद भी जिंदगी में जिंदा रहना आसान हुआ, उसकी चिंता खत्म हुई, लेकिन जो अपने साथ और अपनों के साथ और अपनों के बीच में जीने की बात थी, कहीं ना कहीं उस पर तो क्वेश्चन मार्क दिखाई देता है। तो इन 7 दिनों में ये एक नई चीज़ सामने आई है, एक नया अनुसंधान है, और कितने पावरफुली और कितने आराम तरीके से, दोस्तों मेरे को लगता है कि कम से कम इस देश में तो और विशेष रूप से मैं कहूँगा गुजरात में तो संत परंपरा रही है, और संन्यास परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी रही है, और हमारे आसपास या हमारे गांव में भी कभी ना कोई लोग तो ऐसे आते ही रहते हैं जिन्होंने ज्ञान के लिए अपना पूरा जीवन परिवार से निकल गए और संन्यास लिया और मेहनत किया। तो कम से कम भारत जैसे देश में इस बात के लिए हमको शंका नहीं है कि लोगों ने पूरी जिंदगी किस तरह से किसी ज्ञान के लिए, किसी समझ के लिए, किसी उपलब्धि के लिए लगाई है। उसकी इम्पोर्टेंस तो हमको पता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी, हेलो हेलो, नहीं अभी बीच में कुछ गड़बड़ हुआ। अच्छा, पहले गड़बड़ था। हेलो, ठीक है, क्या बात हो रही थी? हाँ, इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मैं भूल गया हूँ, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे। हाँ, क्या आप लोग को कथा सुनने की आदत है? ये कथा नहीं है, क्लास है। तो क्लास का मतलब है कि लगातार हम कनेक्ट रहेंगे। मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि रख रहा हूँ, लेकिन आपने मेरे को कहा था कि अभी हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे, ऐसा है कि शिविर शुरू हो गया? अच्छा, हो गया। अच्छा, ये देखो, हाँ, हो गया।
तो देखिए, इस बात में हमको कोई शंका नहीं है कि इस देश में किसके पास कितना 1000 करोड़ है, कौन प्रधानमंत्री हो गया, कि कौन यूएनओ का सेक्रेटरी हो गया। इस देश ने कभी किसी का पूजा किया है? मैं भी आपसे कहूँ, आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करो जिसका आप दिल से सम्मान करते हो, तो आपके ध्यान में कौन आता है? आंखें बंद करके उस व्यक्ति का याद करो जिसको आप दिल से सम्मान करते हो, तो कौन याद आता है? बहुत पैसे वाला, बड़ी कार वाला, बड़े पद वाला, कौन याद आता है? मेरे को याद है। तो इसका मतलब ये हुआ, यदि मेरे को भी याद करते हो तो क्यों याद करते हो, है ना? तो कोई अच्छाई की वजह से याद करते हो, किसी अच्छे आचरण के कारण याद करते हो। आपको पता चले सोम भाई रात को रूम पे जाके बाटली खोलते हैं, तो अगले दिन भी मैं ऐसे ही बोलूंगा जैसे अभी बोलता हूँ, लेकिन अगले दिन सुनने नहीं आओ। इसका मतलब है कि आपको ये भरोसा है कि आदमी, या जितने लोगों से भी सुना, आपस में जो भी कुछ परिचय हुआ है, ये आदमी जैसा बोलता है ऐसा ही जीता है, ये दोनों के बीच में गैप नहीं है, तभी हम किसी को सुनना चाहते हैं। शब्द कभी भी बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करते। बेसिकली हम किसी के उन आचरण को उन शब्दों के माध्यम से सुन रहे होते, तो आचरण ही स्वीकार होता है और कुछ भी स्वीकार नहीं होता। तो देखो, सोचने की बात तो ये है कि यदि आप सभी आंखें बंद करके उस व्यक्ति को याद करते हो जिसका आचरण आपको प्रभावित करता है, तो आपको कोई क्यों याद करे? क्या लगता है? आपको कोई क्यों याद करेगा? आपकी साड़ी के कारण, कि आपकी गाड़ी के कारण, कि आपके पद के कारण, कि आपके पैसे के कारण? आपको कोई क्यों याद करेगा? तो सच्चाई तो यही है, मेरे को भी कोई याद करेगा तो मेरे किसी आचरण के कारण ही करेगा, मेरी किसी अच्छाई के कारण ही करेगा। और ये बात भी ठीक है कि अभी तक हमारे पास आदमी की अच्छाई का, आदमी की सच्चाई का कोई मापदंड है नहीं। भारत की जो परंपरा है उसमें थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला स्थितियां हैं। या तो आप 1000 करोड़ कमा के दिखाओ तब कोई आपको देखेगा, या आप 1000 करोड़ दान कर दो तब कोई आपको देखेगा, बीच में नहीं देखने तैयार। ये बड़ी मुश्किल काम है। तो मैं भी जब कॉलेज से निकला और ये सब दौर शुरू हुआ, तो मेरे को लगा यार समाज में बहुत सारी प्रॉब्लम है, और ये ठीक कैसे होंगी, तो कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मेरे को लगता था कि बस आईएएस बनना है और अगले दिन रिजाइन कर देना है, क्योंकि आईएएस से कम में कोई सुनता नहीं है इस देश में। तो कभी लगता है कि आईएएस होने से कोई सुनेगा, कभी लगता है कि 1000 करोड़ होके फिर दान देने से सुनेगा, कभी लगता है कि वो सन्यासी हो जाने से सुनेगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे अब ये लगता है कि कोई बात कहने लायक होगी तब कोई सुनेगा, कोई बात सुनाने लायक होगी तब कोई सुनेगा। तब ये प्रॉब्लम नहीं है कि लोग सुनना नहीं चाहते, समस्या ये है कि हमारे पास सुनाने लायक कुछ होता नहीं। क्या लगता है ना? आज भी हम अभी बद्रीनाथ में 10 दिन का अध्ययन बिंदु, जो इसके हायर लेवल होता है, उसको हम लोग किए। तो रिपीटेडली गंगोत्री में हमने पिछली बार किया था, उत्तरकाशी में 2 किए, अभी बद्रीनाथ में किया। तो रिपीटेडली सेम घटना दोनों जगह घटते हुए देखे। एक तो वहाँ के स्वामी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या करते हो कि ये 10 घंटा लोग बैठे ही रहते हैं और कोई घूमता हुआ दिखाई नहीं देता है। बोले हम लोग कथा करते हैं तो 3 घंटे से ज़्यादा कोई बैठ नहीं पाता है, उसमें भी बीच बीच में बाथरूम जाते रहते हैं।
और बाथरूम के बहाने क्या गुटखा खा के आएंगे कि क्या करके आएंगे पता नहीं। दूसरी बात, जो वहाँ का कैटरर था बहुत बढ़िया खाना बनाता था, उससे बात, तो बीच बीच में आके वो शिविर में बैठ जाता था, तो उसको अच्छा लगने लगा। तो उसने अपनी ज़िंदगी की कहानी शेयर किया कि वो MBA किया और उसके बाद कोई काम जॉब वॉब अच्छी नहीं मिली, तो किसी ने कैटरर का काम दे दिया। अब बोले ये इतना काम बढ़ते जा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इसको कहाँ रोकूं। अब बद्रीनाथ से लेके उत्तर भारत, मेरठ दिल्ली के पास पड़ता है, वहां तक उसकी तमाम जगह में उसका कैटरिंग का काम। शिविर के लास्ट में उससे बात हुई। वो शिविर शुरू होने के जस्ट पहले थोड़ा सा येलो अलर्ट हो गया, एक आध पहाड़ गिर गया होगा, उसकी न्यूज़ आ गई, तो उसकी वजह से कुछ लोग नहीं आ पाए, तो हमारी संख्या थोड़ी कम हो गई। तो शुरू में बोला कि संख्या कम हो गई है, थोड़ा सा 500 रुपये पर डे पर हेड में नहीं पुसाएगा, 450 में नहीं पुसाएगा, तो आप लोग कुछ बढ़ा दो। तो हम बोले क्या करना है, तो बोले 500 कर दो, तो हमने 500 कर दिया। लास्ट में वो बोलता है, बोले बात इतनी बढ़िया है, बोले अगले उत्तरकाशी शिविर में अपनी बीवी को लेके आता हूँ। तो बोला और 50 रुपया पर डे पर हेड मेरी तरफ से कम करता हूं। अब वो जो रूम साफ करने, बाथरूम और कमरा साफ करने के लिए आता था, लास्ट के दिन जब मैं सूटकेस पैक कर रहा था, तो आता है, तो उसको आंखों में चमक थी। मेरे को बोलता है आप बोर्ड पे लिखते बहुत अच्छा हो। जो खाना परस रहे हैं लोग, तो जो खाना परस रहा है, जो रूम साफ कर रहा है, जो खाना बनवा रहा है ना, हर एक आदमी बिना बुलाए उस इवेंट से अछूता नहीं है, क्योंकि बात जो भी कुछ हो रही है बिल्कुल आपकी जिंदगी से जोड़ के हो रही है, वो आपके लिए हो रही है और आपकी जिंदगी उसमें बदलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये सब कहने का आशय इतना ही है कि ये 7 दिन ना तो मेरे लिए कोई ऐसा कार्यक्रम है कि अच्छी कथा करूंगा तो अगली बार और मोटी वाली कथा मिलेगी, ना तो मेरे लिए कोई ये कमाने खाने का धंधा है, और आपने भी अपना 7 दिन का समय निकाला है, तो कितने लोग ये चाहेंगे कि ये 7 दिन बाद हमारी ज़िंदगी जैसी आज है इससे बहुत बेहतर होने वाली है, ऐसा हम चाहते हैं। ठीक है, और ये होगी। मेरे को लगता है कि जो पुण्य समर्थ परिवार के रूप में है और विसनगर के तमाम हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, ये 7 दिन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कितने लोग ऐसे हैं जो विद फैमिली यहाँ मौजूद हैं? विद फैमिली, जोरदार। विद फैमिली का मतलब आपका क्या होता है? मिनिमम 2 पहिया, है ना? तो कितने लोग हैं जिन परिवारों से मिनिमम 2 लोग? कितने लोग ऐसे हैं मिनिमम 2 लोग वाले? और कितने लोग हैं जो 5 से, या पूरा परिवार बैठा है, ऐसे कितने लोग? पूरा परिवार, जोरदार ताली। देखो, जो लोग पूरा परिवार आए हैं उनके बारे में तो कह देना चाहता हूं कि थोड़ा सा 2 दिन धैर्य आपको बनाए रखना होगा। कोई भी एक माइंडसेट से हम जब इस तरह की किसी वर्कशॉप में आते हैं, तो हमारी पीछे की विचारधारा, हमारी पीछे की कुछ मानसिक चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं। तो थोड़ा सा जिस तरह का कंटेंट है, जिस तरह का डिलीवरी है, जिस तरह से बातचीत करने का तरीका है, उसके साथ आपका सामंजस्य बैठने में 1 से 2 दिन लग सकता है। तो थोड़ा सा आपको 2 दिन धैर्य। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि बहनों की संख्या ज़्यादा है, भाई माइनॉरिटी में आ गए। हस्बैंड को 3 बच्चे देके आ गई, तुम बच्चे संभालो, मैं शिविर करके आती। हस्बैंड को ठीक काम मिल गया। तो बहनें हाथ उठाएं एक बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो, बहनों को बहुत खुशी होगी इस बात को समझने और जानने से। अक्सर जब पति लोग किसी इस तरह के शिविरों में जाते हैं, तो बहनों को थोड़ा खतरा शुरू हो जाता है। बहनों को लगता है अब ये घर छोड़ के भागेगा या घर की जिम्मेदारी नहीं निभाएगा,
क्योंकि भारतीय पूरी परंपरा में परिवार को, ये भी एक कैसी बात है, उस समय आवश्यक रही होगी, लेकिन जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वो परिवार मेरे ज्ञान पाने के लिए बाधा बन जाए, क्या ये बात ठीक लगती है? ऐसा क्यों होना चाहिए? जिस परिवार में मैंने जन्म लिया वो परिवार मेरे ज्ञान के लिए बाधा कैसे हो सकता है या क्यों हो गया है, और यदि हो गया है तो उसको ठीक होने की जरूरत है। तो इसका मतलब है लगभग जीवन विद्या शिविरों की ये ताकत है, ये उसकी खूबसूरती है कि बहनें शिविर में आती हैं तो अगले अगले शिविर में पति साथ में आते हैं, पति आते हैं तो वो अपनी पत्नियों को लेके आते हैं, बच्चे आते हैं तो वो अपने पूरे परिवार को लाने की कोशिश ही करते हैं। और जो पूरे परिवार आ जाते हैं, मैं लगातार इस बात को पिछले 15-20 सालों में देख रहा हूँ, जितने लोग पूरे परिवार साथ में चलना शुरू हो गए, धीरे धीरे देखो परिवारों में 2 स्थितियां बनेंगी ही। एक स्थिति ये होगी कि हम परिवार में रहने वाले लोग एक दूसरे के नजदीक आएंगे, दूसरी स्थिति ये होगी कि हम एक दूसरे से दूर जाएंगे, रह एक ही घर में रहे हैं। अभी की स्थितियां कैसी हैं? हम एक घर में एक छत के नीचे साथ साथ रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं कि जीते हैं? रहते हैं, क्योंकि जीना तो भावपूर्वक ही होता है और भाव तो गड़बड़ाते रहता है। यदि हमारी सारी जिंदगी की सारी परेशानियों को समेट के एक लाइन में कहा जाए तो मेरी व्यक्तिगत परेशानी और मेरे परिवार में जो कुछ भी मेरी परेशानी है उसको एक लाइन में कहा जाए तो क्या बोल सकते? क्या बोल सकते हैं? एक लाइन में मेरी व्यक्तिगत जिंदगी में जो परेशानी है और मेरे परिवार में जो परेशानी आती है मेरे को, या मेरे ऑफिस में भी आती है, उसको एक लाइन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? यदि बहुत व्यावहारिक रूप से देखें, मैं कह रहा हूं, आप उसको अपने में जांच के देखिएगा, जांचते रहिएगा, क्योंकि ये देखो, ये कोई भी ऐसी चीज नहीं कही जा रही कि जो कुछ कहा जाएगा और आपको सुनने में अच्छा लगेगा। बिल्कुल एक एक लाइन मैथमेटिक्स है, बिल्कुल एक एक लाइन के साथ साथ चलेंगे तो कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन घटेगा। अभी जो बात कहने जा रहा हूं, समझ लो कि अभी मैं कुछ आपके सामने वो कह रहा हूं जहां आपको साथ साथ चलना है। मेरी परेशानी इतनी है कि मेरा अपने लिए भाव और अपनों के लिए भाव लगातार एक जैसा बना रहता है कि ये बदलते रहता है। भाव शब्द पकड़ते हैं ना, भाव शब्द गुजराती में भाव ही बोलते हैं, लागणी भावी, चलेगा? तो अब ये फिर से बोलता हूं कि मेरे परिवार में रहते हुए मेरा अपने लिए भाव और अपनों के लिए भाव लगातार एक सा रहता है कि बदलते रहता है? बदलते रहता है। हाथ उठाओ, है ना? और आप क्या चाहते हो? बदलते रहे कि स्थिर रहे? बदलते रहे कि स्थिर रहे? स्थिर रहे। कैसे बदलता है, कोई जरा बोल के बताओ, कैसे बदलता है? अपने भाव को बोल के बताओ। हाँ जी, अपन ऐसी चर्चा करेंगे ना, मेरे को प्रवचन देना है ऐसा नहीं है, अपन बात करेंगे। हाँ जी, माइक कहाँ है? माइक है सभा में? माइक कहाँ? हाथ उठाइए। माइक 1 2 3 4, टोटल माइक कितने अपने पास? 5। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, शेयर, कोई भी शेयर करें, बहनें शेयर करें, भाई लोग शेयर करें, आप कैसे आपका भाव बदलता है। हाँ जी, खड़े हो जाएं, आप खड़े हो जाएं, बस बस एक जन माइक ले लीजिए। आपको गुजराती में कंफर्टेबल लगता है तो आप गुजराती में बोलिए, और हिंदी में लगता है तो हिंदी में बोलिए। હવે સપોઝ ક્રિકેટ ફિલ્ડમાં હું રમું છું, ક્રિકેટ में खेलता हूँ, हाँ अगर मेरे से गलती होती है हाँ तो मैं बोलता हूँ मेरे से ये हो गई मिस्टेक। हाँ और अगर किसी ने मेरे को रन आउट किया, करवाया, हाँ। तो क्या तूने जानबूझ के मेरे को रन आउट कराया, हाँ यानी तूने मेरे को जानबूझ के किया, पर ये मेरे से हो गया। हाँ, तो ये मेरे से बहुत- गलती होती है तो मैं करना नहीं चाह रहा था, हो गई, हाँ, अगर और दूसरे ने जानबूझ के मेरे को कराया, रन आउट कराया। ऐसा भाव बदलता है। और घर में
घर में भी ऐसा होता है कोई बार। हम्म आज अगर मैं चिल्लाया किसी पे, हम्म छोटे बच्चे पे, तो मेरे से हो गया यार, मैं टेंशन में था, और लेकिन मेरा कोई ब्रदर मेरे बच्चे पे चिल्ला रहा है, जानबूझ के इसने चिल्लाया इस पे। ऐसा होता हाँ। है ना। हाँ जी, और माइक लीजिए, आगे माइक दीजिए। हाँ जी, आगे 2-3 माइक, एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। हाँ, अगर मैं और मेरा हस्बैंड है तो बाहर कोई बात हुई कि भाई मेरी वो वर्षा बोल रही है वो बात सही है, तो ऐसा लगता है कि वाह क्या मुझे समझते हैं मेरे हस्बैंड। और लेकिन घर में कुछ बात हुई और बोले कि नहीं ऐसे करना है, तो लगता है कि मुझे समझता ही नहीं है, तो भाव तुरंत बदल जाता है। तो ऐसा होता है। हाँ, आधे घंटे पहले लगता है बस यही समझता है, और आधे घंटे बाद लगता है बस ये समझ 22 साल कभी नहीं समझेगा। समझे ही नहीं, 22 साल से नहीं समझा। तो ऐसे भाव बदलता रहता है। हाँ जी, जैसा हम थोड़ा सोचते, सा अपने इंट्रोडक्शन भी करते जाइए। धारा पटेल फ्रॉम विसनगर। हाँ जैसा हम सोचते वैसा ही बिल्कुल सामने वाला व्यक्त होता है, हाँ, तो हमारा भाव उसके लिए तो अच्छा लगता होता है समझता है। हाँ, पर हमने सोचा है और उससे उल्टा कुछ वो कर देता है, तो फिर हमारे भाव में गड़बड़ी आ जाती है कि हमने बोला था वो वैसा नहीं हुआ, तो ऐसा होता है भाव के बारे में। और ये दिन में कितनी बार ऐसा होता है? बहुत ज्यादा बार, क्योंकि सोच तो हमारी और उनकी सेम होती नहीं है, तो वो तो बहुत ज्यादा बार होता है। और शादी के पहले ही थोड़ी सोच ठीक रहती है। एंगेजमेंट होने से शादी होने के बीच में हाँ, वो तो काफी मैच करते क्योंकि साथ में नहीं रहते हैं तो उतना ज्यादा सिर्फ फोन पर या वैसे ही होता है, जब साथ में चलते हैं तभी डिफिकल्टी ज्यादा आती है। हैं। तो साथ में रहने से ऐसा क्या हो जाता है? क्योंकि वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं, और होता कुछ और है। इसलिए हाँ जी, और कौन शेयर करेगा? नमस्कार भैया जी, हाँ जी, परेश भाई भट्ट सीतपुर। जब सहमति नहीं बनती और अपने आप को प्रूव करने के लिए जब ईगो अपर लेवल हो जाता है तभी भाव बदलते हाँ, सर। नमस्कार सर। जी जी, बढ़िया। हाँ जी, थोड़ा अपना परिचय करते जाइए। હા હું સિપોર અમદાવાદ અમેરિકા. હા પોતાની ભૂલ, હા નજીક રાખો. હા એટલે વતન મારું સિપોર, અમદાવાદ રહું છું ને અમેરિકા બી રહું છું, હમણાં જ આવ્યો છું. એટલે ઘરની અંદર ઘરવાળા પોતાની ભૂલ હોય છતાં કબૂલ ના કરે એટલે પણ પરિસ્થિતિના અનુસાર એકબીજાના ભાવ ઓછા થતા હોય છે. गलती करने से स्वीकार नहीं करते हैं तो भाव बदलता है। आ रहा है, धीरे धीरे आएगा। नमस्कार। मैं चाहता हूं कि मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। नमस्कार, हम ध्रुव कुमार बात कर रहे हैं। सर हमारा क्वेश्चन था एक कि अपने काम से सेटिस्फेक्शन ना हो। हाँ, मतलब हमें ये तो- भी एक बात है कि दूसरा कोई बीच में है ही नहीं, दूसरा कोई बीच में नहीं है। मैं जो कर रहा हूं मेरे को मेरे ही काम से सेटिस्फेक्शन नहीं है और मेरे को खराब लगता है। मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया जो मेरे को लगता है कि मेरे को नहीं बोलना था, तो मुझको ही खराब लगता है। तो अभी दूसरा कोई व्यक्ति बीच में नहीं है, या मैं जो कर रहा हूं मेरे को लगता है कि मैं बहुत मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हूं। मैं दूसरों से कंपेयर करता हूं, तुलना करता हूं, अपने आप को छोटा पाता हूं, तो मैं अपने आप को असफल मानता हूं। कोई दिन मेरे को लगता है कि मैं सफल हूं, कोई दिन लगता है कि मैं असफल हूं, कोई दिन लगता है कि मैं सफल हो जाऊंगा, कोई दिन लगता है कि नहीं होऊंगा। ये लगातार फ्लक्चुएशन चलता है, ऊपर नीचे होते रहता है। जी नहीं सर, अभी एक और क्वेश्चन था। हाँ, बोलिए बोलिए। पूछ सकते हैं? हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे अपने दूसरों के प्रति तो हमारा अच्छा व्यवहार है, लेकिन हमें पता है कि हम कर सकते हैं, लेकिन अपने पोटेंशियल को कैसे जैसे कि हम ये कहना चाहते हैं कि पोटेंशियल को अपने कभी कभी हमें लगता है कि हम कर सकते हैं लेकिन कर नहीं पाते, तो उस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़े? आप क्या काम करते हैं? हम वैसे तो अभी फिजिक्स के विषय शिक्षक है। फिजिक्स के शिक्षक हैं। हाँ, और अभी ऐसा है तो हम उसको कहाँ- कैसे कहाँ- आगे लेके कहाँ? जाए? विसनगर में ही है। नहीं सर, हम अभी दानेरा है, बॉर्डर
बॉर्डर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। की तरफ, राजस्थान बॉर्डर की तरफ, तो उसको कैसे विचार के आगे लेके जाए कि ऐसा है? तो देखो अभी सॉल्यूशन तो धीरे धीरे करेंगे, बात तो करेंगे, लेकिन इतना तो समझ में आ गया कि फिजिक्स आप एक दिन में नहीं पढ़ाना शुरू किए, नहीं, पहले वो तो 12-15 एक साल पूरा सदंतर पढ़े प्रोसेस थे, और जब पहला लेक्चर लिए थे आज पढ़ाते हुए कितने साल हो गया? मिनिमम 3 साल। 3 साल हो गया। तो इससे ये भी समझ में आ रहा है कि हाँ, कोई दिन मेरे को फिजिक्स नहीं आती थी, मैंने पढ़ना शुरू किया, 10-15 साल लगाया, और कोई दिन मैंने उसको लेक्चर लेना शुरू किया तो मेरे को अपनी कमियां दिखाई देती हैं, धीरे से मैं उसको बेहतर कर रहा हूँ। तो ये एक पार्ट दिखा कि जहाँ मेरे को दिख रहा है कि फिजिक्स बेहतर हो रही है, तो मेरे को लगता है कि समस्या फिजिक्स है नहीं, समस्या ये है कि या मूल जो पोटेंशियल की बात कर रहे हो कि अभी हमारा पोटेंशियल बिखरा हुआ है, वो किसी एक जगह में फोकस होता नहीं है। अभी मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है मेरे को फिजिक्स पढ़ाना एक जॉब जैसा, एक जॉब मेरे को मिली है, कल कोई दूसरी मिल जाएगी, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ। तो सही अर्थों में वो जो मन कोई चीज के साथ लगना है, जब तक मन कोई चीज के साथ नहीं लगता है, अभी बैठिए, अभी दिल्ली में हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे, तो दिल्ली में ये जितने रेसलर्स हैं, जो कोच हैं, जो इंटरनेशनल कुश्ती के लिए और तमाम चीज़ों के लिए रेसलिंग करवा रहे हैं, वो 5 कोच अभी एक वर्कशॉप में, इस वर्कशॉप में थे, और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर ये लोग क्रिएट कर रहे हैं। और उसमें से जो सज्जन, एक अभी रवि ढैया, और अभी ये जो बीच में मर्डर हुआ था गैंग में जो है ना, तो ये पूरा ये सब ये उनका कोच था। उसने कहा देखो, एक पीड़ा तो ये मेरी है कि मैं लगातार स्टेडियम में 24/7 रहता हूँ, मेरा घर 25 किलोमीटर दूर है, और आना जाना अपने आप में दिल्ली में 3 घंटे का काम है, तो वो प्रैक्टिसेबल ही नहीं है। और मेरा बच्चे को मैं देखता हूँ कि वो पहले इतना था, अभी इतना हो गया, अभी इतना हो गया, तो मैं घर नहीं मेरा घर छूट रहा है, मेरी पत्नी परेशान है, उसको लगता है कि यदि इसी यही जॉब है तो तुम जॉब छोड़ दो, जैसा होगा करेंगे, लेकिन ये तो परिवार छूट रहा है। एक तरफ उसका परिवार छूट रहा है, एक तरफ वो जिनके लिए रात दिन मेहनत करता है, उसमें से मान लीजिए कुछ लोग को मेडल मिलता भी है। अब 100 में से मेडल मिलने वालों की संख्या 5 है, और बाकी सब ने ये बहुत मेहनत करके बॉडी बनाई है, और बहुत मेहनत करके उन्होंने जो भी गेम में मेहनत किया है, और उस तरह की मेहनत करते करते उस तरह का एक लाइफस्टाइल और उस तरह का एक जीने की आदत भी पड़ गई है। और आगे जिनका गवर्नमेंट जॉब उनका लगेगा, जो कोई सी गेम में कोई मेडल वेडल लेके आएगा, तो सबको तो गवर्नमेंट जॉब लगेगा नहीं, सबका मेडल आएगा नहीं। तो 95% में से बड़ा वर्ग है जो किसी गैंग के लिए भी तैयार हो रहा है। ये एक मुसीबत खड़ी हो रही है। अब वो बोल रहे हैं कि अब हम इसको कैसे हैंडल करें, और ये गेम को भी सही तरीके से कैसे उसको मोटिवेट कैसे करें, क्योंकि जितने सारे बच्चे आ गए हैं और फिर फुल टाइम वो तो 24 घंटे वहीं रहते हैं, तो उनको मोटिवेट करने का तरीका, तो बेसिकली गेम को यदि देखेंगे तो शरीर बल और मनोबल की संयुक्त अभिव्यक्ति के रूप में गेम है। कि आप कितना, वो कह रहा है कोई भी गेम में परफॉर्म वो कर रहा है जिसका उस समय फोकस मैक्सिमम है। शूटिंग से लेके तमाम तरह के जितने गेम है, बोले जो अंदर से जितना शांत है उसका निशाना उतना अच्छा हो जाता है। तो शांत का इतना ही मतलब है कि उस समय वो बिल्कुल हिलना डुलना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये सारी चीजें, फिर चाहे मैं फिजिक्स पढ़ाऊं, कि मैं डायमंड कटिंग करूं, कि मैं कोई भी काम करूं, सवाल इस बात का है कि मैं अपने बीवी बच्चों के साथ घर में रहते हुए भी मैं फिजिकली उनके बीच में बैठा हूं, मैं मेंटली उनके बीच में नहीं हूं। सामने वाले को मेरे से किसी प्यार की तलाश है, किसी अपनेपन की तलाश है, वो कुछ अपने कुछ शेयरिंग करना चाहता है, कुछ आपसे सुनना चाहता है, पर आपका मन है कि वो कहीं और बिखरा हुआ है। तो ये जो बिखरा हुआ मन है, ये जो बेचैन मन है, ये जो अपने भीतर किसी असफलता या किसी असंतोष या किसी कंपैरिजन में आके जो नेगेटिविटी के साथ है, जो भीतर से घबराया हुआ मन है, या किसी चीज की जो चीज फिर घर में उपलब्ध हो जाती है उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड मानता है, जो नहीं मिली है उसकी तलाश में आदमी रहता है। तो बेसिकली हम अपने वर्तमान के साथ जी नहीं रहे हैं, है ना। हम किसी असंतुष्टि को झेल रहे हैं, हम किसी फ्यूचर में किसी सफलता के लिए प्लान कर रहे हैं। ये सारा जो बिखरा हुआ मन है, ये कोई बड़ी उपलब्धि प्रेजेंट में वर्तमान में दे नहीं पाता।
बात पहुंच रही है ना? हर आदमी अपने में किसी पहचान और सम्मान की तलाश में रहेगा ही, ये उसकी मौलिक जरूरत है, ये उसकी खाने से भी अहम जरूरत है। लेकिन उसकी अपनी पहचान की तलाश, उसके अपने सम्मान की तलाश, उसकी अपनी जिंदगी, उसकी अपनी सफलता, उसका फ्यूचर के बारे में अंततः कोई मशीन है जो सोचने का काम कर रही है। और हम में से हर व्यक्ति की एक जर्नी है, आपके सोचने का एक पैटर्न है, और ये एक दिन में नहीं बना है, ना ये एक दिन में बदलेगा, और इसका मैकेनिज्म मेरे पास नहीं है ना? जैसे मैं कहूं कि हमारे बीच में एक अच्छे आदमी की पहचान क्या है, और नजदीक आ जाता हूं कि अच्छे बहनें काफी बड़ी संख्या में हैं। यदि सारी बहनें बोलेंगी तो एक अच्छे पति की पहचान क्या होगी? एक अच्छे पति की पहचान क्या होगी? क्या लगता है? एक अच्छे पति की पहचान या अच्छी पत्नी की पहचान? है समझ सके। और आप तो सुबह और शाम को और हो जाते हो, आपको क्या समझे आदमी? जब तक मैं इस वाली पत्नी को समझता हूं वो दूसरी वाली हो जाती। पति जब तक इस वाली पत्नी को समझता है, पति को समझता है, तब तक उसका कुछ दूसरा हो जाता है। हमारा खुद का चित्त भी एक जगह कहां रहता है? अभी जो चीज हमको 2 घंटे पहले बहुत अच्छी लग रही थी, अब हमको उतनी अच्छी नहीं लग रही है। तो ये जो हमारी परेशानी है कि ये जो मेरी सोचने की मशीन है, तो मैं आपसे जो बात कहना चाह रहा था कि हम सबकी एक ही परेशानी है कि हमारा जो भाव है अपने लिए और अपनों के लिए, वो लगातार बदल रहा है। और बदल भी कैसा रहा है? बदल भी कैसा रहा है? उसमें खुशी है कि घबराहट है? स्थिरता है कि अस्थिरता है? चिंता है कि शांति है ना? उसमें कोई अस्थिरता है, उसमें कोई अशांति है, उसमें कोई असंतोष है ना? वो किसी दूसरे के पीछे दौड़ रहा है। उसका कोई अपना लक्ष्य है कि नहीं है? मैं क्या करूं कि मेरे को तृप्ति मिल जाए, मेरी जिंदगी कैसे मेरी हो जाए? अभी मेरी जिंदगी उधार की हो जाती। मैं कह पा रहा हूं? बात पहुंच रही है ना? तो हमारी सारी परेशानी केवल इतनी है कि मेरे लिए भाव और मेरा अपनों के लिए भाव, ये भाव है कि अभाव है? गुस्सा भाव है कि अभाव है? गुस्सा स्नेह का अभाव है। तो बेसिकली हमारे भीतर वो अभाव जो है वो तो सुखदायी नहीं हो सकता ना। अभाव तो खड़े होने की जगह नहीं दे सकता ना, ठोस जमीन नहीं दे सकता है। भाव ठोस जमीन देगा कि अभाव ठोस जमीन देगा? जोर से बोलो। भाव ठोस जमीन देगा। तो मेरे को खाना बनाना आता है, मेरे को डायमंड बनाना आता है, मेरे को खेती करना आता है ना? मेरे को भाव बनाना नहीं आता है। तो इस शिविर में क्या काम करेंगे? इस शिविर में भाव की फैक्ट्री लगाएंगे। अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में आ जाए, अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में आ जाए, है ना? मैं मेरी जिंदगी को चलाऊं और शानदार तरीके से चलाऊं, उसका कोई मापदंड भी हो, है ना? हमेशा मैं किसी दूसरे को देख के कंपेयर करके इस बात पे पहुंचने की कोशिश करता हूं कि मैं ठीक चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, मैं सफल हूं कि असफल हूं। मेरे सफलता असफलता का मापदंड क्या है? वो मैं हूं कि कोई दूसरा है? मेरे सुंदरता का मापदंड कोई दूसरा है, मेरी सफलता का मापदंड कोई दूसरा है ना? मेरी खुशी का मापदंड कोई दूसरा है ना? मेरे हाथ में, मेरे खुद के हाथ में मेरी जिंदगी नहीं है। हमेशा वो किसी दूसरे के कंपैरिजन में है, किसी दूसरे के पास है, वो कहीं गिरवी रखी हुई है, उसको वापस लेके आना। बढ़िया। तो चलो यात्रा शुरू करते हैं। तो सार क्या है?
क्या बोलने की कोशिश किया? समस्या क्या है एक लाइन में? भाव लगातार नेगेटिवली बदलता है, भाव बदल रहा है और नेगेटिवली बदल रहा है, और सॉल्यूशन क्या है? भाव स्थिर हो और बदले भी तो पॉजिटिवली बदले, बदले भी तो पॉजिटिवली बदले, और उसका नियंत्रण मेरे हाथ में हो कि उसका नियंत्रण परिस्थितियों के हाथ में हो। उसका नियंत्रण मेरे में, खाना बनाना मेरे हाथ में है कि नहीं, गाड़ी चलाना मेरे हाथ में है कि नहीं, इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनाना मेरे हाथ में है कि नहीं। तो जिन चीजों की एक्सपर्टीज, जिन चीजों की स्किल, जिन चीजों का कौशल मेरे पास आ गया है, उसके मामले में मैं निश्चिंत हो गया कि ये काम तो हो जाएगा। अब ये भाव और विचार की दुनिया का कौशल मेरे हाथ में आ जाए, ये नियंत्रण मेरे हाथ में आ जाए, तो भाई साहब फिर देखना दुनिया कैसी होती है ना। खुशी की बात यह है कि अभी आज की डेट में गुजरात में 4 शिविर एक साथ चल रहे हैं, है ना। एक शिविर ये चल रहा है, अजय भाई हमारे बीच में हैं, एक बार खड़े हो जाएं। अजय भाई सूरत में रहते हैं और करीब 4-5 साल पहले एक पॉइंट आ गया जब ये आप ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं, जादू, एक विद्या है, जादूगरी वाली विद्या है, चिराग है, क्या चिराग बोलते हैं, जादुई चिराग है। वो जादुई चिराग रगड़ने से आदमी को अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार आ जाता है। पूरी लोग क्या कहेंगे वो पैर के नीचे रख के चलता है। इसके पहले हमारी कमर का हड्डी सीधा ही नहीं होता है, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हम कितनी बार सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, और मैं क्या कहता हूं, मैं क्या कहता हूं कहीं दब के रह जाता है। तो मैं क्या कहता हूं, मेरी आवाज इतनी बुलंद हो पाए, मेरे सोचने विचारने की ताकत इतनी बुलंद हो पाए कि मैं अपनी जिंदगी के सटीक निर्णय सही समय पे ले पाऊं। दोस्तों, जिंदगी लंबी है ना छोटी है, जिंदगी केवल उस घटना का काम है कि आप सही उम्र में सही निर्णय ले पाए। और ये सही निर्णय लेने का विज्ञान ये हमारे पकड़ में आ जाए तो जिंदगी तो मानव के अलावा कोई भी तो स्ट्रगल करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोई आम, कोई नीम, कोई हाथी, कोई, है ना, सब अपनी अपनी जिंदगी बढ़िया जी रहे हैं, या सब जिसको जो करना है ठीक ही कर रहा है। हम इतना सक्षम क्रिएशन होने के बावजूद हम जितना स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं, उसका एक ही मतलब है कि हमारे पास जिंदगी का नक्शा नहीं है, जिंदगी का मैनुअल नहीं है ना। आप वो मोबाइल खरीद के ले आए पहली बार और मैनुअल आपके पास नहीं है। मोबाइल सुनने से थोड़ा सा उतना ठीक नहीं लगता। आप एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन मान लीजिए खरीद के ले आए और बिल्कुल उसका कोई मैनुअल आपके पास नहीं है, तो कैसे ऑपरेट करेंगे। तो ये वर्कशॉप आपकी जिंदगी का मैनुअल आपको देता है कि कब कैसे निर्णय लेने हैं और कैसे जिंदगी को आगे लेके जाना है। तो चलो इन सुखद संभावनाओं के साथ बात शुरू करते हैं। अजय भाई, मेरे को लगता है कि वो ग्रुप का परिचय फिर हम एक साथ करा देंगे। टी ब्रेक के बाद फिर आपका ग्रुप सेपरेट हो जाएगा। तो मैं 4 शिविर की बात शेयर कर रहा था, उसको वापस आपसे कनेक्ट कर देता हूँ। तो जैसा कि ध्वनित भाई ने अपनी बात के दौरान कहने की कोशिश की है कि इस वर्कशॉप का इतना ही मतलब है, 7 दिन में कोई हमको पूरा अधिकार आ जाएगा ऐसा नहीं होगा, लेकिन 7 दिन में हमको ये भरोसा हो जाएगा कि अपनी जिंदगी के सही निर्णय सही उम्र में लेने का भी कोई निश्चित विज्ञान है। जिस तरह से हम सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, उसी तरह से जिंदगी का भी एक साइंस है जिसको बोर्ड पे लाया जा सकता है, बोर्ड पे बात की जा सकती है। ये आपको भरोसा हो जाएगा। तो इसके बाद 12-13 बुक्स हैं
जिनमें कि उसका फाइन डिटेल के बारे में जिनको लगता है कि हमको आर पार करना है और हमको इस पर पूरा अधिकार पाना है, तो वो लोग फिर आगे बुक्स में जाते हैं। तो एक बैच यहाँ पे है जो अजय भाई के साथ मिलके लगभग 30-40 लोग हैं पूरे गुजरात से और बाहर से। ये एक अलग वर्कशॉप यहाँ पे चलेगी और शाम को जब हमारी गोष्ठियाँ होंगी तो ये दोनों लोग आपस में मिलते रहेंगे, ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया है। जो इस शिविर में बच्चे आए हैं उनके साथ भी हमने कुछ प्लान किया, उनके लिए शुरू हो चुका है। अच्छा चालू हो, हाँ बच्चे अब नहीं दिख रहे, बढ़िया, थैंक यू। श्रवण भाई एक हमारे मित्र हैं और आनंद निकेतन बोल के अहमदाबाद में स्कूल का चेंज है, तो वो मिलके वहाँ पे एक टीचर्स के लिए वर्कशॉप चल रहा है। और राजकोट के हमारे मित्र यहाँ पे हैं, आदमी यूनिवर्सिटी में काफ़ी इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि पूरी के पूरा एक विश्वविद्यालय इस पूरे ज्ञान की रोशनी में उस तरफ काफ़ी इंटेंसिवली जा रहा है। तो वो लोग भी, वो टीम भी यहाँ पे मौजूद है। और देश भर के और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो इस तरह से इस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। देश में बहुत सारे कुछ स्कूल एजुकेशन सिस्टम हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो ये पूरी बात एक तरह से है ना, इस पूरी बात को क्या बोलेंगे, इसको धर्म बोलेंगे कि अध्यात्म बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, ये शिविर को क्या बोलेंगे, है जीवन विकास, आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ। हाँ जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, लाइफ डेवलपमेंट, जीवन विकास। हाँ, तो इसको एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम ही बोले। देखिए एक और बात कह के बात को शुरू करता हूँ कि ये एक तरह से एक कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है। जब एजुकेशन सिस्टम बोलते हैं तो हम बहुत सारे अनावश्यक डरों से बच जाते हैं। जैसे अभी बड़ा डर ये है कि कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी गुरुजी से जुड़ा हुआ है, कोई किसी गुरुजी से जुड़ा हुआ है, और हमारी आस्थाओं को लेके हम काफ़ी संवेदनशील होते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आप जिन गुरुजी से जुड़े हुए हो, जिन धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए हो, आप बढ़िया जुड़े रहिए, आप बढ़िया जो भी पूजा पाठ करते हैं करते रहिए। ये पूरा जो कुछ आपके सामने 7 दिन का प्रकल्प होगा, ये शुद्ध रूप से एक एजुकेशन सिस्टम है ना। तो एजुकेशन सिस्टम का मतलब है जिन चीज़ों को अभी तक हम धर्म और आस्था के साथ कर रहे थे उनको समझ के भी किया जा सकता है, और दोनों को समझते हुए फिर जो निर्णय आपके भीतर से आएगा आप उस तरह से चलते जाना। तो इसमें कोई चीज़ को ये नहीं कहा जा रहा है कि कोई चीज़ गलत है या कोई चीज़ खराब है। मूल चीज़ ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से हम एटम को, सेल को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, इंजीनियरिंग को क्लासरूम में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, क्लासरूम में पढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ, देखो इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये जो आदमी नाम की चीज़ है, ये मैं जो और आप और हम सब जो लोग हैं, ये सब भी नेचर की एंटिटी है कि नहीं है, ये प्रकृति में बनी कोई इकाई है। यदि ये प्रकृति में बना हुआ एकम है, इकाई है, तो इस पे कोई नेचर का नियम काम करता होगा। तो जिस तरह से एटम पे नेचर का नियम काम करता है, पेड़ पौधे पे काम करता है, पशु पक्षी पे काम करता है, ऐसे ही मानव के खुश होने का भी कोई नेचर का नियम है। यदि मेरे को मानव के खुश होने का, मानव के भावपूर्ण होने का नेचर का नियम का पता चल गया, तो मैं मेरी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले सकता हूं और मेरी जिंदगी को बेहतर चला सकता हूं। तो जिंदगी को क्लासरूम में लाया जा सकता है, और एजुकेशन को बदलने की कवायद ओशो से लेके, जय कृष्णमूर्ति से लेके और तमाम जितने भी बड़े चिंतक हुए हैं, शिक्षा के जितने भी तमाम कमीशन हुए हैं, गांधी जी से लेके तमाम लोगों ने इस बात को बार बार कहा है कि हमारी वर्तमान शिक्षा मानव नहीं मशीन बनाती। अभी दिल्ली में हमने वर्कशॉप किया जिसमें दिल्ली के 2 IAS ऑफिसर जो एजुकेशन को चलाते हैं वो लोग पूरा 8 दिन वर्कशॉप में थे। 8 दिन की वर्कशॉप के बाद उन्होंने कहा कि ये वर्कशॉप तो हमारा लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में चलने की जरूरत है। हाँ, ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जो देश में जो IAS में सिलेक्ट होते हैं उनका लगभग 1 साल का ट्रेनिंग लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी, लबासना बोलते हैं, वो मसूरी में है, मसूरी उत्तराखंड। तो बोले ये ट्रेनिंग तो हमारी लबासना मसूरी में होने की ज़रूरत है। हम आदमी के साथ डील करते हैं, आदमी की हमारी कोई समझ नहीं है।
उसमें से जो एजुकेशन डायरेक्टर, उनका भी नाम हिमांशु है, हिमांशु गुप्ता। तो उन्होंने तो वर्कशॉप के बाद में पूरा ही, उनको तो ऐसा लगा जैसे कोई उनकी दुनिया बदल गई है। उन्होंने पूरा 8 दिन के, अब दिल्ली का जो आईटी सेल है वो लगातार वर्कशॉप पे काम कर रहा है। उसके 40 मिनट्स के वीडियो काट के और वर्ल्ड की सारी जितने भी मेन लैंग्वेजेस हैं उसमें उसको ट्रांसक्रिप्ट करके वर्ल्ड की सारी यूनिवर्सिटी को भेजने की तैयारी चल रही। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल हम में से कुछ लोग बैठे हैं जिनकी शादियां अभी नहीं हुई हैं। कितने लोग हैं, हाथ उठाओ। गुड, बहुत बढ़िया, आप सबको शुभकामनाएं। लोग हमको शादी में बुलाते हैं, मैं देखो हमारा काम तो शादी के बाद शुरू होता है। तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं वो अगले 2-5 साल में होने ही वाली हैं, और अगले 2-5 साल में आप 1-2 बच्चा लिए घूम रहे होगे। कितने लोग हैं जिनके बच्चे लगभग 10वीं 12वीं में पहुंच गए हैं, ठीक है। और कितने कितने लोग हैं जो दादा दादी बनने वाले हैं और बन चुके हैं, बनने वाले हैं और बन चुके हैं, ठीक है। ये तीनों ही उम्र मेरे को लगता है कि जिंदगी 3 बार हमको जिंदगी में मौका देती है। हाँ जी, बच्चों को थोड़ा सा बाहर घुमा दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात। बाय। एक बार जब हम बच्चे होते हैं तब हमको लगता है कि हम सब कुछ खुला हुआ है हमारा, हम सब कुछ सीखना समझना चाहते हैं। वो मौका हाथ से निकल गया। तो जब हमारी शादी होके हमारे बच्चे होते हैं तो हमको लगता है कि अपने बच्चों की जिंदगी में जो कमी हमारी जिंदगी में रही सो रही, हमारे बच्चों की जिंदगी में ना रहे। तो एक बार हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के लिए सब कुछ हो जाए। तीसरी बार फिर एक मौका मिलता है, हम दादा दादी बनते हैं और भावनात्मक रूप से हम फिर से माँ बाप बनते हैं, और हमको लगता है कि हम अपने बच्चों को कुछ बेहतर दे पाए, है ना। आज बच्चे, है ना, छोटे बच्चे मान लो शिविर में दिखाई देते हैं, तो मेरे को लगता है कि छोटे बच्चों के लिए ये बहुत पावरफुल संस्कार है कि उनको इतने सारे लोग पढ़ते लिखते हुए, और अपने परिवारों में भी, जिन परिवारों में ये कंटेंट जा रहा है, जहां लोग परिवारों में मिलके बैठ के इस पे चर्चा करने लगे हैं, बच्चा जो देखता है केवल वही सीखता है, बोलने से कुछ नहीं हो रहा है। बच्चा जो देखता है केवल वो सीखता है। तो बच्चे को यदि कुछ भी सिखाना है, वो घर के बड़े लोग उस आचरण के साथ हैं, बस इतना ही काम होने की जरूरत है। हम घर के बड़े लोग, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, यदि हमको लगता है कि हम किसी का दिल से सम्मान उसके आचरण के लिए करते हैं, तो नेचुरली कोई हमारा सम्मान भी हमारे आचरण के लिए करेगा। हम किसी श्रेष्ठ आचरण को पा जाएं, हम किसी बढ़िया आचरण को पा जाएं, किसी बढ़िया भाव को पा जाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं, बल्कि हमारे भाव खराब कैसे हों इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। कुछ करते कि नहीं करते है? आओ चुगली खेले। तो हर आदमी सुबह उठ के इस संकल्प के साथ ही उठता है कि आज शाम तक मैं दुखी होकर रहूंगा, और शाम तक आप सफल हो ही जाते, है ना। तो शाम तक हमारे दुखी होने का हम कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं, लेकिन मेरे सुखी होने की दुनिया को मैं हर दिन बढ़ा सकता हूं। जिंदगी का प्रॉफिट मेरा सुखी होना है, मेरा खुश होना है। हर दिन मैं कितना खुश हुआ, और पिछले 5 साल पहले मैं कितना खुश हुआ, और आज मैं कितना खुश हूं। तो मेरी खुशी बढ़े, मेरा भाव बढ़े, मेरे भाव की दुनिया पे मेरा अधिकार आ जाए, ये मेरे मानव होने का मतलब है। बाकी खाने पीने की व्यवस्था। तो दोस्तों, ये भाव की दुनिया को खोलेंगे और इस पे हम 7 दिन काम करेंगे। तो मैंने एक ही बात कही कि मानव है। मानव का मतलब है कि वो मन से संचालित है, और मन का एक ही धंधा है कि उसको हर तरफ सुख की तलाश है। मन का एक ही धंधा है, उसको कोई मतलब नहीं है सही गलत से।
उसको एक ही धंधा है कि सुख कहाँ मिलेगा, है ना। देखो गुजरात में तो बाटली बंद है, फिर भी बाटली गुजरात में ही सबसे ज्यादा खुलती। तो मानव को तो सुख की तलाश, अब वो तो जहां सुख मिलेगा जाएगा। तो इसका ये भी मतलब हुआ सही गलत बाद में है, पहले मानव को सुख की तलाश। सही भी हो और सुख भी हो तो, लेकिन सही उपलब्ध नहीं है और मैं सुखी हुए बिना रह जाऊंगा, यह संभव नहीं। तो मानव को मानव कहा गया क्योंकि वो मिनिमम मन से संचालित है और मन का एक ही धंधा है कि उसको सुख की तलाश। मानव में जिसको कह रहे हैं कि 24 घंटे वो किसी भाव और विचार के साथ बना ही रहता है। खाली बैठे हैं तो भाव और विचार है कि नहीं है, शांति से बैठे हैं तो भी कुछ ना कुछ भाव और विचार चलता ही रहता है। तो भाव और विचार 24 घंटे 7 दिन हमेशा हमेशा के लिए लगातार चलता ही रहता है। अब यदि इस भाव में अभाव है और यदि इस विचार में अंतर विरोध है, तो ये क्या होगा? ये दुख का कारण होगा कि सुख का कारण होगा? ये मेरे दुख का कारण होगा ही। कोई भी मेरे को बचा ले, मेरा पति कितना भी अच्छा रहे, मेरी पत्नी कितनी भी अच्छी रहे, और मेरा बेटा भी कितना अच्छा रहे, पड़ोसी भी कितना अच्छा रहे, यदि आपके भाव में अभाव है, आपके विचार में अंतर विरोध है, इतना कहना पर्याप्त है कि और कहूं? पहुंचता है ना? इतनी बात पहुंचती है ना? तो इसका मतलब है कि अब आपको कोई बचा नहीं सकता, आपका दुखी रहना निश्चित है। आपका पति लाख अच्छा सही, आपकी पत्नी लाख अच्छी सही, घर में सारी सुविधाएं हैं, कोई चीज की कमी नहीं है, लेकिन कमी है कि आपके भाव और विचार में कोई अंतर विरोध है। आप किसी अभाव की मानसिकता के साथ हो, कोई भूतकाल की पीड़ा है, कोई वर्तमान से विरोध है, कोई भविष्य की चिंता है ना। बाहर सब ठीक है लेकिन आपके अंदर ठीक नहीं चल रहा है, तो गई भैंस पानी में। कब निकलेगी? 7 दिन बाद निकलेगी। बीच बीच में झांकती रहेगी निकल निकल के। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ अब मेरा भाव और विचार ये कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? कैसे बदलता है? किन किन कारणों से ये बदल सकता है? परिस्थिति के अनुसार। यदि परिस्थिति के अनुसार ये बदलेगा, और परिस्थितियां तो मेरे हाथ में नहीं है, तो मैं हमेशा गुलाम रहूंगा कि स्वतंत्र रहूंगा? बात समझ में आ रही? अब देखो, एक एक बात को अपन थोड़ा स्थिर करके चलें। अभी तक हमारी स्थिति कैसी? हम क्या बोलते हैं? मैं क्यों दुखी हूं? कोई बोलेगा तुम क्यों दुखी हो, तो पता चला बोले सास ने ऐसा बोल दिया, या पति ने ऐसा बोल दिया, या ऑफिस में कुछ हो गया। तो हमेशा मेरे दुख का कारण कौन है? हमेशा मेरे दुख का कारण कौन है? कोई बाहर वाला। और ये बाहर वाले का नियंत्रण मेरे हाथ में है? नहीं है। और आप में से कितने लोग ऐसे ही मान के जीते हो, ऐसे ही रोज दुखी होते हो? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ओ हाँ, तो आप सबका हाल क्या, आप सबका भविष्य कैसा है? जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्होंने तो हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं करी, उनका तो भविष्य और खराब है। तो यदि मेरा भाव और विचार दूसरों की वजह से लगातार प्रभावित होता है और दूसरों का आचरण मेरे नियंत्रण में नहीं है,
तो मेरा दुखी होना पक्का है कि नहीं है? और उम्र के साथ साथ ये दुख घटेगा कि बढ़ेगा? अब आपको कौन बचाएगा? अब आपको ज्ञान बचाएगा। भाई जिसको कार चलानी आती है और कितनी भी भीड़ सही उसको उसका कॉन्फिडेंस लूज थोड़ी होता है। कितनी भी भीड़ सही, कुछ भी सही, है ना, आदमी को पता है अपने गाड़ी चलानी आती है। तो अपने को अपने भाव और विचार की गाड़ी चलानी आ जाए। देखो अभी भी कैसा होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक स्कूल का। एक प्रिंसिपल ने 10 टीचर को बुला के एक साथ डांटा, तो 10 का भाव और विचार एक समान प्रभावित होता है कि अलग अलग प्रभावित होता है? अलग अलग होता है ना। उसमें तो एक तो हंस के ही निकल जाता है, उसको लगता पागल है, और एक उस बात पे जाके सुसाइड कर लेता है। ये भी हो सकता है। अच्छा, अब आप अपने ही बारे सोच के देखो कि यदि आपको 10 बार बुला के डांटा गया तो 10 बार आप एक समान प्रभावित हुए कि कभी कम हुए कि कभी ज्यादा हुए? कभी कम कभी ज्यादा हुए। जब कभी मूड ठीक था, मैं अंदर से खुश था और बाहर से कुछ डांट पड़ गई तो अपन ने उसको लेट गो कर दिया। और जब कभी मैं पहले से ही दुखी था और फटे में किसी ने और मार दी, तो इसका मतलब ये हुआ। और कभी ऐसा भी सोच सकते हैं कि मैं 20 साल पहले जिन चीजों से जितना प्रभावित होता था, क्या आज भी मैं उनसे उतना ही प्रभावित होता हूं कि कम हो गया है? यह भी पता चलता है। इससे एक पता चला कि मैं अलग अलग समय पे अलग अलग प्रभावित होता हूं, और मैं पहले जितना प्रभावित होता था उतना प्रभावित नहीं होता हूं। किसी एक बात से सारे लोग एक समान प्रभावित नहीं होते हैं। इसका मतलब ये प्रभावित होने वाली चीज को बदला जा सकता है कि नहीं बदला जा सकता? बात ध्यान में आ गई? ये जो प्रभावित होने वाली चीज है मेरे अंदर, ये हमेशा कोई एक जैसा प्रभावित नहीं हो रहा है। 20 साल पहले मैं जैसा प्रभावित होता था, किन्हीं मामलों में मैं वैसा प्रभावित नहीं होता हूं, वैसा मेरे को डर नहीं लगता जैसा 20 साल पहले लगता था। इसका मतलब है मैं अब बड़ा हो गया हूं। पहले मैं डरता था, अब मैं वैसा नहीं डरता हूं, है ना। चाहे पैसे को लेके बात कर सकते हैं, किसी और चीज को लेके बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये डरने वाली चीज को, ये प्रभावित होने वाली चीज को, है ना, हैंडल किया जा सकता है, प्रभावित किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को ये पता चल जाए कि ये प्रभावित होने वाली चीज कहां पे है, कोई नहीं, इसका भी भाव और विचार जोर से प्रभावित हो जा रहा है। ये दोनों मिलके एक दूसरे का प्रभावित कर। ये देखो ये कितने सक्षम हैं, अभी से पूरी सभा को प्रभावित किए हुए। आओ, हाँ जी, कहाँ पहुंचे? साथ साथ चल पा रहे, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मेरे को ये समझ में आ जाए कि ये भाव और विचार नाम की मशीन कैसे काम करती है और ये कैसे प्रभावित होता है और कैसे प्रभावित ना हो, तो मेरी जिंदगी की गाड़ी निकल जाए। तो देखो, इससे एक बात ये तो समझ में आ गई। अब ठीक से शांति से सोच के देखें तो मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरे सुख दुख का कारण कौन है? यदि सामने वाला मेरे दुख का कारण होता तो मैं हमेशा हर बात से, किसी भी बात से उतना ही प्रभावित होता, उसको मैं हैंडल नहीं कर सकता था। मैं हमेशा उतना ही प्रभावित नहीं भी होता हूं, और किन्हीं मामलों में मैं अब पहले से बेहतर भी हो गया हूं। और सभी लोग किसी एक बात से एक समान प्रभावित नहीं भी होते हैं, और सभी लोग नेगेटिव प्रभाव के साथ जीना चाहते हैं कि नेगेटिव प्रभाव से मुक्त होना चाहते हैं। सभी लोग मुक्ति होना चाहते हैं। इसका मतलब मुक्त हुआ जा सकता है। इसका भी कोई विज्ञान है, इसकी भी कोई साइंस है, इसकी भी कोई टेक्नोलॉजी है कि मैं अपने ऊपर पड़ने वाले नेगेटिव प्रभाव से मुक्त हो सकता हूं।
इसका मतलब मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मेरे सुख दुख का कारण कौन है? मैं स्वयं। मैं स्वयं। तो मेरे सुख दुख का कारण का इतना ही मतलब हुआ, इसका इतना ही मतलब हुआ कि जैसे आपकी गाड़ी में पेट्रोल का इंडिकेटर लगा रहता है और कोई समय के बाद वो बताता है वो येलो पे आ गया है, कोई समय के बाद वो बोलता है कि पेट्रोल खत्म हो गया। तो पेट्रोल का खत्म होना ये अच्छी सूचना है कि खराब सूचना है? सही सूचना है, ताकि अपन पेट्रोल डाल सकें और गाड़ी अपनी चलती रहे। तो आपका प्रभावित होना खराब बात है कि अच्छी बात है? आपका प्रभाव, आपका नेगेटिवली प्रभावित होना खराब बात है कि अच्छी बात है? अच्छी है तो कैसे है बताओ? नहीं, कोई नहीं, बोलो बोलो, माइक लो, माइक दो भाई, हाथ खड़ा करो। हाँ जी, माइक, एक दो माइक आगे रखें, हाँ, एक दो माइक बीच में रखें। अच्छा, उसमें से पॉजिटिव की तरफ जा सके, जो प्रभावित होता है नेगेटिव से, तो उसको चांस मिलेगा आगे। हाँ जी, इधर एक माइक, माइक आगे। हाँ, देखो जितनी बात मैं आपके साथ बोल रहा हूं ये मैं आपके साथ संवाद कर रहा हूं, एक एक शब्द के साथ अपन साथ साथ चलते रहें। यदि एक एक शब्द के साथ 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 चलते रहेंगे तो आपकी अभी तक की जिंदगी एक तरफ और 7 तारीख को दोपहर को 1 बजे जिंदगी दूसरी तरफ। ऐसा मैं आपको आश्वासन देता हूं, ऐसा मैं आपको भरोसा देता हूं, ऐसा होगा ही, लेकिन शर्त एक है, आप लाइन टू लाइन साथ साथ चल पाए। हाँ जी बोलिए। अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात से, अगर मैं प्रभावित हो रही हूँ नेगेटिवली या पॉजिटिवली, तो मुझे पता चलेगा कि यहाँ पे मेरी कमी है जो जिस पे मुझे काम करना है और उससे मैं बेहतर हो सकती हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया है ना। अपन सुबह उठते हैं, बढ़िया नहाते हैं, बाल आईना देखते हैं, बाल अपने बाते हैं, अपना कपड़ा ठीक से पहनते हैं, कपड़ा पूरा पहन के आईने के सामने खड़े हो जाते हैं, हाँ भाई सब ठीक ठाक है कि नहीं। तो ये हमने अपने शरीर को व्यवस्थित किया। तो शरीर को देखने के लिए आईना है, मुझको खुद को देखने के लिए मेरा आईना क्या है? ये ठीक हो गया? तो मेरा भाव और विचार खुद को देखने का आईना है। यदि मुझको पता नहीं चलेगा कि कमी कहां पे है तो मैं ठीक भी क्या करूंगा? तो जब मेरे को पता चलता है कि मैं नेगेटिवली प्रभावित हुआ हूं तो मेरे को अपने उस, और कभी कभी मैं किसी पॉइंट पे, आप ये भी कभी ऑब्जर्वेशन करेंगे, किसी चीज पे आप कभी नेगेटिवली प्रभावित हो रहे हैं और कभी कभी लगता है कि मैं आज वैसा प्रभावित नहीं हो रहा हूं। ऐसा होता है कि नहीं? चाहे धन से, चाहे पद से, किसी की सुंदरता से, किसी की कोई और चीज से, है ना। कभी आपको लगता है कि मैं, कोई दिन आपको लगता है कि आज मैं ज्यादा प्रभावित हो रहा हूं, कोई दिन आपको लगता है कि आज मैं उतना प्रभावित नहीं हो रहा हूं। ये लगातार एक जैसी चीज नहीं है, ये बदलती है। और आप इसको नोटिस कर पाओ कि ये बदलती है तो आपको ये और कॉन्फिडेंस आ जाए कि इसको बदला जा सकता है। तो एक बात पे हमारा ध्यान ये चला गया कि मेरे भाव और विचार, जब भी मेरा भाव और विचार नेगेटिवली प्रभावित हुआ तो ये मेरे को नोटिस करने की, ये दुखी होने की जगह है कि ये नोटिस करने की जगह है कि काम कहां पे करना है? हाँ जी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। इस जगह को पकड़ने से हम अपनी जिंदगी में, नेगेटिवली प्रभावित होना एक बात है, उससे दुखी होना दूसरी बात है। कितने लोग इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? है ना, कर पाएंगे? कोई एग्जांपल है? बोलो, माइक दो। देखो जिंदगी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल उस पे टिकने की बात है, उसका साइंस अपने पास होने की बात है। हाँ जी। नेगेटिविटी से दुखी हो गए, हाँ ठीक है, दुख में चले गए, हाँ वो एक चीज है। लेकिन ये आइडेंटिफाई करना कि अच्छा ये नेगेटिव है और इस पे मुझे काम करना है
और कुछ सॉल्यूशन लाना है, ये आप कहने की कोशिश ये कर रहे बीच की गुंजाइश हो गई। हाँ जी। और तीसरी एक घटना है कि सॉल्यूशन है। हैं। वो तो 7 दिन के बाद पता चलेगा, हाँ, मतलब एक संभावना कि हाँ जी। सॉल्यूशन है, हाँ है। तब स्थिति बिल्कुल अलग हो गई। तब अलग होगी कि हाँ इस सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशन मिल रहा है, कहीं है, वो मुझे ढूंढना है ना। तो जैसे अभी मैं कहूंगा कि जैसे आप लोग समस्याओं से दुखी होते हो कि नहीं होते हो, हाथ उठाओ। समस्या से दुखी होते हो कि नहीं होते हो? देखो सारे लोग मिलके एक साथ झूठ बोलते। अभी आप पलट जाओगे सारे। अब समस्याओं से दुखी होते हो कि समाधान का ना होना दुख है? बहुत गेम है ये, बिल्कुल सॉफ्टवेयर है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाया और एक शब्द उसमें गड़बड़ रह गया तो पूरा सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, और एक शब्द ठीक करते ही पूरा सॉफ्टवेयर काम कर गया। तो हमारी जिंदगी बिल्कुल सॉफ्टवेयर है, इसको चलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। केवल ये पहचानना है कि कहां कहां, क्या बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को, डीबग करते हैं ना, क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं ना। तो केवल अपने सॉफ्टवेयर को डीबगिंग आने की जरूरत है, डीबगिंग सीखने की जरूरत है। और भाई साहब आप 7 दिन बाद पाएंगे, 7 दिन बाद हम ये कॉन्फिडेंस तो पा ही सकते हैं कि मैंने 7 दिन के दौरान अपना काफी सारा सॉफ्टवेयर डीबग कर लिया है। उसकी खुशी, उसका हल्कापन आपकी जिंदगी में दिखाई देने ही लगेगा, और आने वाली जिंदगी को डीबग कर लिया जाएगा। इसका एक रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। एक छोटी सी घटना शेयर करता हूं, ताली अच्छे से बजा लो। एक छोटी सी घटना शेयर करता हूं। मतलब देखो मैं तो ना बहुत लाइव ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करता हूं, और मेरे को इस कंटेंट को लेके जो एक कॉन्फिडेंस मेरे 91 में ये सब सोचना शुरू किया, 97 में मैंने पहला शिविर किया, 96 दिसंबर में। ये 7 साल मैंने हर दिन दुख पाया, हर दिन असफलताओं को देखा, हर दिन पीड़ाओं को देखा। परिवार में आर्थिक समस्याओं से लेके, भावनात्मक मानसिक समस्याओं से लेके, और समाज और व्यवस्था की तमाम पीड़ाओं को व्यक्तिगत जिंदगी में जम के भोगा, और खूब भोगा, और उस सीमा तक भोगा कि 3 बार मैं जिंदगी में तो दिखाई नहीं देता। और मैंने जिंदगी पाई है, तो मेरे को लगता है कि ये जिंदगी का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। जिंदगी मुश्किल नहीं है, केवल हमारे सॉफ्टवेयर को डीबग करना हमको नहीं आता है, क्योंकि कोई यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं है। यदि वो एग्जिस्टेंस का यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर हमारे पास आ गया, जिंदगी बिल्कुल आराम का काम। 2 बातों को कनेक्ट करना चाहता हूं। देखो ये सोचने की बात है, सभी मानव में सोचने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? ठीक है, कितना भी सोचें, सोचने की क्षमता खत्म होती है क्या? बीमार में, बूढ़े में, बच्चे में, कितना भी सोचें, सही सोचें गलत सोचें, वो भी आपकी मौज है, लेकिन सोचने की क्षमता तो खत्म नहीं हो रही है। पागल व्यक्ति में भी सोचने की क्षमता बनी रहती है, उसका सोचने का सामंजस्य टूट जाता है, ये अलग बात है। सोचने की क्षमता अक्षय है, निरंतर है, असीम है, सभी में है, समान रूप से है। ये सारी क्षमता किस बात के लिए है? क्या करना है इसका? क्या करना है इसका? समझने के लिए, सिंपल बात। एक छोटा बच्चा कहां से शुरू करता है? देखो कितनी मतलब खूबसूरत बात लगती है। एक 2 साल का बच्चा ज्यादा समय खाने की चीज मांगता है कि ज्यादा समय वो क्वेश्चन पूछता है? जोर से बोलो। इसका मतलब है कि 2 साल के बच्चे को पता है कि ज्ञान मेरी ज्यादा बड़ी जरूरत है, खाना मेरी छोटी जरूरत है। कभी मजा नहीं आता है ये सोच के? हम बड़े लोग को क्या लगता है? खाना ही एकमात्र जरूरत है। सुबह घर से निकले, कम खाना खाने कमाने का इंतजाम कर लिया, रात को आए अपना टंकी भरे,
है ना, आराम किया, सुबह टंकी खाली किए, फिर टंकी भरे, है ना, फिर अगले दिन टंकी भरने का जुगाड़ पे निकल गए। तो इसका मतलब ये हुआ, एक 2 साल के बच्चे को पता है कि ज्ञान मेरी ज्यादा बड़ी जरूरत है, खाना मेरी छोटी जरूरत है ना। इसका मतलब है कि मानव, धरती के सभी मानव के पास में ये सोचने का अनलिमिटेड पोटेंशियल पूरी कायनात को समझने के लिए है। और पूरी कायनात को आदमी जब से धरती पे है तब से मानव समझने के प्रयास में है। काफी लंबी यात्रा हमने तय कर ली है, थोड़ी बहुत यात्रा अभी शेष बची। ऐसी व्यवस्था है, ब्रेक का टाइम नहीं, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको बदलो, है ना। ऐसा नहीं बताना, व्यवस्था मेरे पास रहेगी, आपके पास थोड़ी रहेगी, है ना। ये मेरे को भी नियंत्रित करना चाहते हैं। मेरे पास एक घड़ी रखो, मेरे पास है घड़ी, मेरे को टाइम भर बता दो, मैं ध्यान रखूंगा और आप इशारा कर देना। हाँ बहुत बढ़िया, इसको मत बजाना। हाँ जी, तो मैं इस बात को पूरा करता हूँ फिर ब्रेक कर। देखो बहुत शानदार बात, बहुत बहुत एकदम खूबसूरत बात कहूंगा, और इसको आप समझ के कि आपको ब्रेक के पहले का एक मजा आ जाए कि हाँ यार, ये जिंदगी इतना बड़ा पहाड़ नहीं है जितना बड़ा पहाड़ हम ढो रहे हैं, ये बात। तो 2 बातें अभी करा। तो एक तो ये समझ में आया कि सभी मानव में समझने का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, और जब से मानव धरती पे है तब तक समझने का प्रयास करता रहा है, आगे भी करता रहेगा कि नहीं करता रहेगा? करता ही रहेगा। और समझने के लिए जो पूरी नेचर है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध के लिए अलग अलग है कि सबके लिए समझने का नियम एक ही है सृष्टि में। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? पूरी सृष्टि ना हिंदू की है, ना मुस्लिम की है, ना जैन की है, ना बौद्ध की है, ना सिख की है, ना ईसाई की है, और कितने नए निकलेंगे ना उनकी है। जब आदमी गुफा में रहता था तो वो कौन धर्म का था? बात ध्यान में आ रही? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब खेल केवल इतना है कि मानव में समझने की क्षमता है और सृष्टि समझने के लिए आह्वान है। समझने की क्षमता का सृष्टि के साथ में मिल जाना, उसको पहचान लेने का नाम खुशी है, इसी का नाम जिंदगी। इसका मतलब यह हुआ, ये जो कुछ भी हमने ठप्पे लगाए हुए हैं, ये जैन सॉफ्टवेयर, बुद्ध सॉफ्टवेयर और हिंदू सॉफ्टवेयर और मुस्लिम सॉफ्टवेयर और, है ना, जितने भी ठप्पे हैं, ये बहुत क्लियरली समझ में आता है। मैं कुछ किसी के लिए गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन इससे ये समझ में आता है कि नियम तो एक ही है ना। वो किसी धर्म और जाति और किसी देश और काल परिस्थिति से जुड़ा नहीं है। नियम की तो परिभाषा ही है कि नियम सार्वकालिक होता है, सार्वदेशिक होता है, सार्वभौमिक होता है। नियम का मतलब ही है कि जो बदलता नहीं है उसी का नाम नियम। तो इसका मतलब है मानव में समझने की क्षमता है, पूरी सृष्टि किसी नियम के साथ है, ये दोनों को आपस में मिल जाने का नाम खुशी है। उस खुशी की तलाश में तमाम जो कुछ भी धरती पे सारे प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध है। इनसे हमने जो खुशी पाई है उसका धन्यवाद है। जो शेष है उसके लिए प्रयास करना हमारी आपकी जिम्मेदारी है। एक बात पूरी हो गई। दूसरी बात जो आपने कहा था, मैं उस बात को और जोड़ता हूं। एक तरफ ये स्थिति है कि इंडिकेटर आया और मेरे को पता चला कि ये मेरा अधूरापन है और मेरे पास रास्ता नहीं है, तो क्या करूंगा? मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करूंगा? हमारे दुख का कारण समस्या है कि समाधान का ना होना है? समाधान का ना होना है। एक बच्चा भूख लगने से रोता है, हम भूख लगने से खुश होते हैं, घटना सेम है। क्या कारण? बच्चे को भूख लगता है तो उसके पेट में जो कुछ भी होता है वो उसको नहीं समझ पाता है, और हमको भूख लगने से खाकरा, फाफड़ा, ढोकला, है ना, ऐसा सब का सब दिखने लगता है। अब मैं क्या खाऊंगा? आंख में चमक आ जाती। तो मेरा ध्यान कहां है? मेरा ध्यान उस पेट की जलन पे है कि वो खाने से मिलने वाले स्वाद की तरफ है। जब मेरे पास समाधान होता है तो मेरा ध्यान समाधान की तरफ होता है, समस्या की तरफ जाता ही नहीं। एक छोटी सी बात कह के अभी की सभा को पूरा करते हैं।
कभी मैं ऐसे बैठा बैठा सोचते रहता हूँ कि यार ये आदमी की ज्ञान की इवोल्यूशन की जर्नी इतनी दुखदाई क्यों है? क्यों हमने अपनों से इतना दुख पाया? क्यों इतने युद्धों को झेला? आज यूक्रेन जब शुरू हुआ था तो बोले 4 महीने में, 4 दिन में खत्म हो जाएगा बस। आज उसको 8 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, कितने घर बर्बाद हुए होंगे, है ना। अभी दिल्ली के शिविर में इस बात पे बड़ा लोग सेंसिटिव हो गए कि इस धरती का सारा रिसोर्स धरती के सारे लोगों का है, किसी देश की सरकार को यह अधिकार ही नहीं है कि वो सृष्टि को खत्म करे। क्या कभी विश्व का जनमानस इस पे मोबिलाइज हो सकता है? क्या इस पे वो निकाल सकते हैं कैंडल मार्च पूरे विश्व में? पूरे विश्व के मास को मोबिलाइज, मेरे को लगता है कभी ना कभी कोई मोबिलाइज करेगा कि विश्व के सारे लोग कैंडल लेके निकल जाएंगे कि इस धरती की सरकारों को इस धरती को नष्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। ये धरती की पूरी धरती के सारे लोगों के लिए है और तुम्हारी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए तुम इसको नष्ट करो, तुम बैठ के बातचीत करो, जो भी करो हमको नहीं पता, लेकिन इसको नष्ट करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। क्या लगता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये हो सकता है। और जिस दिन धरती के सारे लोग का मतलब है कि 2% लोग, ज्यादा की जरूरत नहीं होती, केवल 2% मास जब भी मोबिलाइज हो जाता है किसी कॉज के लिए, धरती उस पर सोचने के लिए मजबूर हो जाती है। जिस दिन धरती का मात्र 2% मास मोबिलाइज हो गया कैंडल लेके कि नहीं ये युद्ध करने लायक, तुम जो मर्जी करो, बैठ के बातचीत करो, जो मर्जी करो, लेकिन तुम हमको ठीक से जीने दो, ये इतना धरती का मतलब विभत्स हाल करना, आप सोचो तो सही। उस युद्ध में कितने पुरुष मरे होंगे, कितनी महिलाएं, कितने घर उजड़े होंगे, कितने पशु, और कितना नुकसान हुआ होगा। हमारी तो छोटी सी चोट लगती है, हम दिन भर बैठ के रोते हैं। जिन घरों पे बॉम्ब पड़ते होंगे, जिन घरों पे तमाम ये है ना, तो ये तमाम चीज़ों को जब सोचेंगे तो मेरे को लगता है कि एक ही बात है कि हम मानव अवेयर नहीं है, अपने खुद के अधिकार के लिए भी अवेयर नहीं। मैं एक बार ये बात, चाय हो गई ना, मेरे को लगता है चाय ठंडी हो जाएगी, चाय ठंडी हो जाएगी। देखो चाय ठंडी करना ठीक नहीं है। मेरे को ये बात बहुत, कोई चीज ना जब अपने को स्वीकार हो जाती है तो बिल्कुल वो काम करने लगती है, मैं ये बात देखता हूँ। तो मेरे घर में आज मैं भी अगले महीने दादा बनने वाला हूँ, है ना, और इसी बीच में घर आता जाता हूँ, मैं भी कभी कभी अपने घर जाता हूँ। तो घर आता जाता हूँ तो अभी मेरे को क्या हो गया है कि काफ़ी वो आराम का स्टेटस मिल गया है। मैं घर जाता हूँ तो उनको पता भी आराम करने आया है, तो बहुत आराम के दिन है। तो मैं बैठे बैठे एक दिन सोच रहा था कि यार ये आदमी के इवोल्यूशन की जर्नी इतनी दुखदाई क्यों है? ये प्रकृति अपने आप में इतना पूर्ण है, इसकी महिमा और ये ईश्वर की महिमा, प्रकृति की महिमा में इतना गाते हैं और आदमी इतना रोता गाता है, ये इतना प्रोसेस इतना गलत क्यों है? तो उसी बीच में मैंने एक फिल्म देखी थी, वो गुड न्यूज़। कितने लोगों ने देखी है ना? गुड न्यूज़ में एक बच्चे की डिलीवरी की बात है और वो पूरा प्रोसेस उसमें दिखाते हैं। तो मैं पहली बार, देखो क्या है, हम पुरुष लोग तो माँ बनते नहीं हैं और पत्नी किस दर्द से गुजरती है ये हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारी महत्वाकांक्षाओं के चक्कर में हम कहीं और लगे रहते हैं। तो जब हम कभी बाप बने तो हमको बहुत पता नहीं चला, लेकिन वो गुड न्यूज़ पिक्चर देख के मेरे को पता चला कि एक प्रेगनेंसी के दौरान एक मदर किस तरह के फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस से गुजरती है और क्या क्या उसके साथ होता है। फिर मैं सोच रहा था, लेकिन उस घर में माहौल, उस माँ का भी और घर में पूरे घर का माहौल कैसा रहता है? यदि इतना पेट में, थोड़ा सा पेट में दर्द हो जाए तो कैसा होता है घर में, है ना? और वो इतने सारे चेंजेस से गुजरती है फिर भी तो वो दुखी नहीं हो रही है। और घर में भी माहौल कैसा है? उत्सव का माहौल है, खुशी का माहौल है। जबकि पेट में दर्द होता है, जबकि कोई वोमिटिंग होती है, जबकि कोई प्रॉब्लम होती है, बीपी कम ज़्यादा होता है, किसी किसी को तो कम ज़्यादा ही होता है। तो इसका मतलब क्या है? ये समस्या होने के बावजूद हम दुखी क्यों नहीं हो रहे? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, तीनों तरह की समस्याएं होने के बावजूद भी हम दुखी क्यों नहीं हो रहे हैं? घर में नया मेहमान आने वाला है, कोई बड़ी खुशी आने वाली है, तो किसी बड़ी खुशी आने के बारे में जब हमको कोई शंका नहीं है
जब हमको किसी प्रक्रिया के फल के बारे में शंका नहीं होती है तो प्रक्रिया को हम प्रक्रिया की तरह ले पाते। बात पहुंची? जब हमको किसी घटना के फल के बारे में निश्चितता होती है तो हम उस प्रक्रिया को प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर पाते हैं। जब हम किसी घटना के फल के बारे में निश्चितता नहीं हो पाती है तो प्रक्रिया में आने वाली सारी उतार चढ़ाव को हम दुर्घटना के रूप में लेते हैं। कैसे? कोई पूछे यार ये जिंदगी का क्या मतलब है? आजकल कोई मेरे से, आजकल हमारी उम्र के लोग मिलते ही हैं। मैं एक क्वेश्चन सबसे पूछने की कोशिश करता हूं, वो हर्ट ना हो, और धीरे से पूछने की कोशिश करता हूं, इतने साल में क्या समझ में आया? क्या निकला जिंदगी में? तो आंसर नहीं है हमारे पास। पैदा हो गए किसी परिवार में, किसी ने धर्म धक्का देके रोते गाते हम तो स्कूल जाना नहीं चाहते थे, मारपीट के लोगों ने स्कूल भेज दिया, फिर उधर भी मार खाई, फिर घर आके घर में भी होमवर्क के चक्कर में मार खाई, इतने साल मार खाते खाते बीचे, फिर बड़े हो गए तो शादी हो गई, अब दूसरी वाली मार शुरू हो गई। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर वो दोस्तों को देखा तो कोई आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, फिर वो कंपैरिजन शुरू हो गया, फिर मैंने खुद ही को मारना शुरू कर दिया कि तू असफल है, किसी लायक नहीं है, कुछ नहीं कर सकता है। क्या है ये? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्यों हो रहा है ये ऐसा मेरे साथ? है? क्योंकि इस प्रक्रिया का फल पता नहीं, जिंदगी रूपी प्रक्रिया का फल पता नहीं है। दोस्तों, मेरे खेत में मैंने आम लगाए, 4 साल में फल आ गया, 5 साल में फल आ गया। शाम को जब उसके चारों तरफ घूमता हूं तो उसको देख के खुश होता हूं। एक दिन घूमते घूमते सोच रहा था, आम पे तो फल आ गया, मुझ पे फल कब आएगा? और जिस पे फल नहीं आता है उसको बांझ बोलते। बांझ समझ, गुजराती में चलता है शब्द। जिन महिलाओं को मान लो बच्चे नहीं होते हैं तो उसको बांझ बोलते थे पहले, आजकल तो शब्द ये कम चलता है। बांझ का मतलब शरीर का इतना ही मतलब है कि वो नए शरीर पैदा करता है और पुराने शरीर का सदुपयोग करता है। तो शरीर पे तो फल निश्चित अवधि में आ जाता है। आम का फल 4 साल में आ जाता है, पपीता 1 साल में आ जाता है, सब्जी 60 दिन में 80 दिन में आ जाती है, गेहूं 4 महीने में आ जाता है ना। मेरा फल कब आएगा? मुझ पे कौन सा फल लगेगा? मुझ पे कौन सा फल लगेगा? बस इसी बात करो ना, क्योंकि ये जिंदगी पे लगने वाले फल के बारे में किसी ने बताया ही नहीं। जिंदगी पे लगने वाले फल के बारे में किसी ने नहीं बताया है, तो मेरे को नहीं समझ में आता है यार, मेरी जिंदगी में इतनी उठापटक क्यों हो रही है? आखिर सारी उठापटक का क्या मतलब है? प्रेगनेंसी के बाद एक बच्चा आता है, 9 महीने के बाद एक बच्चा आता है, वो निश्चित है। जिस फल के बारे में पता है उसकी प्रक्रिया को मैं प्रक्रिया के रूप में स्वीकार कर पाता हूं। जिंदगी रूपी 80 साल की जिंदगी पे कौन सा फल लगता है उसकी निश्चितता मुझको नहीं है, तो जिंदगी की उठाफटक मेरे को दुर्घटना जैसी लगती। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। इस पे सोचते रहिए, इस पे सोचते रहिए, लौट के आपके फीडबैक को सुने। अच्छा, ब्रेक कर इंट्रोड्यूस करना, 1 मिनट 2 मिनट बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। अध्ययनार्थी सभी मित्र आ जाएं, है ना। अध्ययनार्थी सभी मित्र आ जाएं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में से कुछ लोग आगे की जर्नी पे जा रहे हैं और आने वाले दिनों में गुजरात में, है ना, 20 शिविर एक साथ चले तो भी क्या। तो सभी लोग सामने आ जाएं, अध्ययनार्थी। बहुत बढ़िया, सबके लिए जोरदार तालियां। ये आपका भविष्य है, लोग समझे नहीं? आप जो लोग शिविर कर रहे हो ये आपका भविष्य है। हाँ जी, तो एक बार अजय भाई सबका, हाँ माइक, एक माइक दीजिए।
ध्वनित भाई के ये तो दिल्ली में होने वाला था, ध्वनित भाई ने इधर शिफ्ट कर दिया। वही इसलिए माइक दे दिया। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पर समाधानात्मक भौतिकवाद का अध्ययन करेंगे, और जैसा सोम भाई ने कहा, इसको शिविर को इसलिए ऐसा डिजाइन किया कि बहुत सारी गोष्ठी होंगी हम लोगों की इवनिंग में, जो ग्रुप है, और उसमें हम लोग उपलब्ध रहेंगे आप लोगों के लिए इवनिंग की गोष्ठी के लिए। तो अजय भाई 25 साल पहले IIT दिल्ली के पास आउट हुए और फिर शेल इंडिया में लगभग नेशनल लेवल की पोजीशन होल्ड करते रहे, और पिछले 5 साल से फुल टाइम अपने आप को निकाल लिया कि जो कुछ खाने पीने का जुगाड़ था पर्याप्त है ना। तो ये किसी तरह का कोई आदर्शवादी कार्यक्रम नहीं है। अपना घर भी ठीक हो, अपने कपड़े भी ठीक हो, खाना पीना भी ठीक हो, और अपना मन भी ठीक हो, अपना भी ठीक हो, परिवार का भी ठीक हो, और पड़ोसी का भी ठीक हो ना। ऐसा सोच के एक पूरा चल रहा है। तो लगभग ये जोरदार फिर से तालियां इतनी बड़ी टीम के लिए। तो शाम को ये सभी लोग आपके साथ गोष्ठियों में मिलते रहेंगे, है ना। दशरथ भाई कुछ कहना चाहते हैं? शाम को जो ये दिया है अपना बेज, उसके पर ग्रुप नंबर ABCD ऐसा लिखा है, तो उसके हिसाब से शाम को अपन बात करके ग्रुप के हिसाब से हर ग्रुप में इसमें से एक एक आदमी आएगा और अपना पूरा दिन की जो बात है उसका संवाद और गोष्ठी के रूप में होगा। दूसरा, मैंने जो बाथरूम वगैरह की बात की थी, अभी चाय के लिए हम ग्राउंड फ्लोर पे किचन है उसमें जाने वाले हैं, तो चाय उधर से आएंगे। तो हर फ्लोर पे टॉयलेट है, और ये सीढ़ी और आगे वाली सीढ़ी उसकी दोनों ओर टॉयलेट है, तो सभी इधर से नीचे जाने के टाइम, ऊपर आने के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। और उधर किचन में भी अपना एक साथ में जाते हैं तो थोड़ा बहुत ये रहेगा, लेकिन आगे पीछे करके ज़रा सब हम 7 परिवार के लोग हैं, तो उसको व्यवस्था को ज़रा ये करके भैया 11:15 बजे हैं। हाँ, और लंच आज कितने बजे रहेगा? 11:15 नहीं, 12:15 हुआ है। 12 बजे है। तो लंच कितने बजे रहेगा? वैसे अपना आधे घंटे का ब्रेक रहता है, लेकिन आधे घंटे का ब्रेक मतलब क्या कि 25 मिनट का ब्रेक और 5 मिनट 7 मिनट में अपन इधर सेटल हो जाते हैं, तो एग्जैक्टली आधे घंटे के बाद अपना फिर से शुरू हो जाए